Success doesn't come easy. Even the most dedicated entrepreneur sometimes finds it tough to stay on track. I, Kirti, event manager of Computer Society of India MIT chapter, is immensely honored and privileged to extend my heartiest and most sincere welcome to everyone who has joined us today for this webinar on how to crack internships and placements. Before we get started, there are some general instructions for you all. Everyone, please switch off your camera and mic. Those who have any query, please mention in the chat box. Please maintain the decorum, no nuisance in the chat box. Any slang or inappropriate word in the chat box will lead to strict actions. Today's webinar is focused on tips and tricks to crack placements and internships, which is of great relevance and significance in today's world. As we are in final or pre final year of our graduation, it is highly important for us to get our dream job. Pressure is increasing day by day as the time of placement is coming. Hence, this event will be very helpful to you all. Throughout the course of this webinar, we will be hearing our experienced and knowledgeable professional in the technical field. He will be sharing his expertise, insights, and practical tips. You'll get to know how to learn from rejections to improve your chances of success in the future. I would like to remind all the attendees that this webinar is an opportunity to learn, share, and network with fellow professionals in your field. Please feel free to engage with the speaker. Now, it's time to introduce you all with our today's speaker, Mr. Deepak Chaudhary. He's currently a technical recruiter at Droices since the past 2 years. During his education time, he also did freelancing and was the team lead for the Likey app. He's also experienced working with various USA clients like Apple, First Republic Bank, Walmart, Google, Adobe, True Religion, and many more. Moreover, he is a writer, a public speaker, and a poet. I would like to express my gratitude to our esteemed speaker who has taken the time out of his busy schedule to join us today. It's an honor to have you here, sir. Deepak, sir, you can start now. Hey, hi Kriti. Thanks for the beautiful introduction, and I'm very glad to be the part of this webinar. So let's start. I would like to share some of experience with all of you guys. So let's begin. Let me share my screen first. Just give me a minute. So it's visible for you guys. Can anyone confirm me? Like you can see my screen or not? Yes, sir. Yeah, Yes. that's great. So जैसा कि आज का हमारा वेबिनार है लाइक हाउ टू यू नो लाइक ग्रैब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट कैसे इसको कर सकते हैं और कैसे हम इसको बेसिकली प्लेसमेंट में हायरिंग करवा सकते हैं अपनी। तो देखो होता क्या है, प्लेसमेंट या तो आपका ऑन कैंपस होगा या ऑफ कैंपस होगा। अब बहुत सारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी क्वेरी रहती है कि यार कॉलेज से हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो अब हम क्या करें, ठीक है, या फिर बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें। तो यार देखो, चाहे प्लेसमेंट हो या चाहे इंटर्नशिप हो, जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया रहता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का या फिर उसके लिए हमें अपना रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें आपको रिज्यूमे बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है, हम इस पूरे सेशन में उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं और क्या क्राइटेरिया है जो हमें उसमें ध्यान देना है, क्या नहीं देना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि रिज्यूमे बिल्ड करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अच्छे कैंडिडेट्स भी होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बट एट द सेम टाइम जिनका रिज्यूमे इतना अच्छा नहीं होता ऐसा हमें लगता है, बट उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम उन सारी चीज़ों में देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में डिफरेंस क्या आता है। इफ़ यू आर इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो वहाँ पे आपको कॉलेज का मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट मिल सकता है। आपको कंपनीज फाइंड करने नहीं जाना है, कंपनीज खुद आपके कैंपस में आती हैं। तो ऐसे केसेस में इफ़ लाइक अगर आपने अपने पूरे कॉलेज के 3 या 4 साल में अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है, आपने कोई फ्रीलांसिंग वर्क करा है और आपके मार्क्स जीपीए अच्छा बना हुआ है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। वहाँ पे आपके टेक्निकल राउंड्स कम होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं और आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
बट एट द सेम टाइम ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं होगा। ऑफ कैंपस में आपको कंपनीज को खुद रीच करने जाना पड़ेगा, और ऐसे केसेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केसेस में आपको एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम उन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, ऑन कैंपस में आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। असेसमेंट टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। ग्रुप डिस्कशन हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आप अपने स्किल्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में हमेशा डिस्कस कर सकते हो। पैनल आपके पास खुद इंटरव्यू लेने आता है, आप कहीं जाना नहीं पड़ता। तो अगर आपका एक कंपनी में सिलेक्शन नहीं भी होता, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस फिर भी अवेलेबल रहते हैं। सेकंड, उसके बाद टेक्निकल टेस्ट, ऑफ कोर्स वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, टेक्निकल टेस्ट होंगे, और वो टेस्ट करना एज कंपेयर टू बाहर जो हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाते हैं उससे ईजी रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आप कम लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो, एक तरीके से अपने कॉलेज के लोगों से ही कॉम्पीट कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद एचआर राउंड भी बहुत इजीली बेसिस पे हो जाता है, और उसके बाद आपके जो मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, और जो कॉलेज का मैनेजमेंट का सपोर्ट होता है वो आपको बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है। ऑफ कैंपस में जैसे कि मैंने क्या चीजें बताई, आपका टेक्निकल इंटरव्यू से पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पे जरूर चेक किया जाएगा। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है बेसिकली, हम वो भी इस पर डिस्कस करेंगे आगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको वहाँ पे एक ज्यादा बड़ी टीम मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। ऑफ कैंपस में रिज्यूमे प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एचआर इंटरव्यू यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पर एचआर इंटरव्यू इतनी जल्दी नहीं होता, यहाँ पे 2-3 टेक्निकल राउंड मिनिमम होंगे, उसके बाद ही एक आपका एचआर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आपको इन सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ पे आप इजीली जॉब्स और इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या, एक तो लिंक्डइन हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आज हम इसके बारे में आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। देन इंटर्नशिप के लिए इंटरशाला इज द बेस्ट वन। इंडीड भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नौकरी.com भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बेसिकली एचआर या फिर जो भी टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं वो ज्यादा सर्च करते हैं ऐसा कैंडिडेट, बिकॉज ये ज्यादा डिमांडिंग बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन प्लेटफॉर्म में अगर आपका एक अच्छा रिज्यूमे है, एक अच्छा आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, तो वहाँ पे आपके चांसेस हमेशा ही ऑन अ हायर साइड रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो हम शेयर कर देंगे आगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मार्केट में बहुत सारे टेम्पलेट हैं, हम देख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल हर किसी का टेम्पलेट एक दूसरे से वेरी करता है। तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, एज मैं फुल स्टैक डेवलपर यार कौन सा टेम्पलेट चूज करूं, अगर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं तो मैं कौन सा टेम्पलेट चूज करूं, यार मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मेरे को ये वाला टेम्पलेट में आ नहीं पा रहा तो मैं कौन सा चूज करूं, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ज्यादा लिखने को कुछ नहीं है तो मैं कौन सा टेम्पलेट चूज करूं। तो सबसे पहला, जब भी आप रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हो, एक अच्छा टेम्पलेट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे चूज करेंगे वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसमें देखने वाले हैं। सेकेंड चीज, फुल नेम इन बिगर फॉन्ट्स। आपका जो भी पूरा रिज्यूमे रहेगा उसका साइज मोस्टली सिमिलर होना चाहिए एक्सेप्ट द फुल नेम। हमेशा अपना फुल नेम डालना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में 2 दीपक हैं या फिर मैंने कहीं पे अपना रिज्यूमे शेयर करा वहां पे 10 दीपक हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, हमेशा हमें अपना फुल नेम रखना चाहिए। इन सम केसेस किसी किसी का फुल नेम ज्यादा बड़ा होता है, 3-4 से ज्यादा बड़ा नाम होता है, उन केस में आप 2 या 3 इनिशियल्स अपने रख सकते हो, काफी होते हैं। बट अपना जो नेम है, अगर आपने पूरा फोन साइज अगर 11 या 12 पे रखा है तो आप अपने नेम को 13 या 14 पे रख सकते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा बड़ा करना है, आपको इस चीज का बस ध्यान रखना है। उसके बाद समरी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो होता क्या है ना, समरी होती क्या है, किसी भी चीज की समरी तब लिखते हैं हम जब हम उस चीज को कंप्लीट कर चुके होते हैं। हम क्या गलती करते हैं एज एन इंडिविजुअल, हमेशा समरी टॉप पे लिखी जाती है तो हम सबसे पहले समरी लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तक हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकते, कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम उसकी समरी तो बेसिकली लिख ही नहीं सकते ना। तो हमेशा समरी जब भी आप लिखो या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो, वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, कभी भी पहले नहीं लिख सकते। बिकॉज समरी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपके स्किल्स हैं, आपके जितने भी अर्लियर एक्सपीरियंस है, सबका एक तरीके का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको सबसे लास्ट में लिखना चाहिए, कभी भी पहले नहीं लिखना। इवन तो वो रिज्यूमे के टॉप में आएगा बट उसको हम लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में शॉर्ट एड्रेस लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
पूरा एड्रेस लिख देते हैं, WZ दिस दिस दिस। ऐसा नहीं करना है। उनको उससे मतलब नहीं है कि उनको आपके घर में ना ही कोई पार्सल डिलीवर करना है, ना कुछ सामान भेजना है। तो एड्रेस कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक कि न्यू दिल्ली, इंडिया इज इनफ। अगर कोई बंदा कैलिफोर्निया में रहता है तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, दैट्स इनफ। कैलिफोर्निया में कहाँ रहता है सिटी में, उतना काफी है। मुझे ब्रीफ में पूरा एक्सप्लेन करके अपना एड्रेस नहीं लिखना है। उसके बाद फोन नंबर जरूर लिखें, बिकॉज फोन इज द फर्स्ट वे टू कनेक्ट टू एनी कैंडिडेट। ठीक है, ईमेल में भी क्या होता है कि रिस्पॉन्सेज टाइम आपका थोड़ा लंबा होता है, बिकॉज आपको ईमेल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, फिर वेट करना है रिवर्ट कब आएगा, तो वो फिर भी लंबा प्रोसेस होता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, HR राउंड भी होगा तो कॉल करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कुछ भी डिस्कस करना है तो फोन ही करेंगे, तो फोन नंबर अपना हमेशा वहां पे डालो। उसके बाद ईमेल, ईमेल आईडी हमेशा ही प्रोफेशनल होनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी मैं देखता हूँ, जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि हम राहुल नेम के आगे डाल देते हैं राहुल सुपर रॉकी करके, या फिर कोई एंजल प्रिया समथिंग, कुछ भी ईमेल आईडी ऐसे ऐसे फंकी टाइप की हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कभी भी रिज्यूमे के अंदर। ईमेल शुड बी वेरी प्रोफेशनल। हमेशा अपने इनिशियल्स लो नेम के, जैसे दीपक चौधरी, उसके बाद अल्फा नंबरिक करना है उसे, तो सिंपल में कुछ एक दो नंबर जो मेरे रिलेवेंट नंबर्स होंगे अल्फा नंबरिक में वैसे बिल्ड करूंगा। दूसरी चीज ये भी नहीं करना है, काफी लोग क्या करते हैं कि नेम अल्फा नंबरिक के चक्कर में सपोज कि DC, दो अल्फाबेट रखने के बाद नंबरिक बहुत बड़ा कर देते हैं, 989933 समथिंग, तो वैसा नहीं करना है। एक बहुत जेनरिक ईमेल रखना जरूरी है, बिकॉज क्या होगा कि HR के माइंड में वो हमेशा स्टिक रहना चाहिए, ये ईमेल आईडी है, मुझे इसको ईमेल भेजना है या फिर मुझे कुछ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन। अगर आपने लिंक्डइन क्रिएट नहीं किया है तो आज जाओ, अभी बना के रहो, बिकॉज लिंक्डइन सबसे ज्यादा बेस्ट वे होता है किसी भी कैंडिडेट को रीच करने का। क्यों होता है वो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक शॉर्ट इंसाइटफुल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम लिंक्डइन से एक कैंडिडेट को जज करते हैं बेसिकली कि कैंडिडेट सच में जेन्युइन है या फिर नहीं है। सिंपल सी बात, अगर कोई कैंडिडेट अगर एप्पल में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, तो उसका लिंक्डइन अगर हमें नहीं दिखता है या फिर लिंक्डइन पे हमें नहीं पता लग रहा है कि यार इसका कुछ आईडी वगैरह क्रिएट है, तो हम माइंड में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, यार इतना अच्छी कंपनी में बंदा काम कर रहा है बट इसका कोई भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है या सच कोई गिटहब प्रोफाइल नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बंदे को उस टाइम पे ही रिजेक्ट कर देते हैं, इवन दो कैंडिडेट सच में काम कर रहा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं बनाया तो ये हम देखेंगे आगे कैसे बना सकते हैं। उसके बाद गिटहब, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो या फिर कोई पोर्टफोलियो का लिंक है, ये सारे एडिशनल ऑप्शंस होते हैं हमेशा। अगर आपने बना रखा है तो बिल्कुल ऐड करो, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो एज अ रिक्रूटर मैं जाके देख सकता हूँ कि आपने क्या काम किया है, आप कितने वहाँ पे एक्टिव रहे हो, आपने लास्ट प्रोजेक्ट में वो सच में काम किया है या नहीं किया है। तो वी कैन सी ऑल दैट थिंग देयर, तो हमें वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है, कंपनी नेम, सपोज कि मेरी कंपनी का नेम है एप्पल, मैंने डाला, मैंने डेजिग्नेशन डाल दिया फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कैसे डाला जाता है, ड्यूरेशन हमेशा मंथ आएगा और उसके साथ में ईयर आएगा बेसिकली। तो कैसे डाला जाता है, सपोज कि आई एम वर्किंग लाइक सिंस जून 2018, तो मैं वहां पे कैसे मेंशन करूंगा, जून, JUN, इनफ 2018 टू प्रेजेंट बेसिकली। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन मेंशन ही नहीं करते। तो उस केसेस में होता ये है कि हम ये नहीं पता लगा पाते कि यार बंदे के पास एग्जैक्टली कितना एक्सपीरियंस है। तो ड्यूरेशन अगर हमें पता लग जाएगा तो वहाँ पे काम आएगा। इफ सपोज कि कोई कैंडिडेट पहले एप्पल में काम कर रहा था, एडोबी में काम कर रहा था, देन वो उसकी हम दोबारा से उसी क्लाइंट पे हायरिंग कर रहे हैं, तो अगर उसका मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस देख पा रहा हूँ कि इसने 2 या 3 साल काम किया था इस पोजीशन पर, उस केसेस में क्या रहेगा कि मुझे बहुत इजी रहेगा उस कैंडिडेट को दोबारा हायर करना, बिकॉज मैं उस टीम को दोबारा से कनेक्ट कर सकता हूँ, डिटेल्स लेके उसको जल्दी प्रोसेस में हायर करवा सकता हूँ। दैट्स अ थिंग। तो ड्यूरेशन, डेजिग्नेशन और कंपनी नेम बहुत जरूरी है। अब आता है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कि कंपनी नेम सपोज कि जिसको हम जानते हैं, जैसे कि मैंने एक्रोबैट डाल दिया, मैंने अडोबी डाल दिया, मैंने वॉलमार्ट डाल दिया, ये सारी कंपनी सबको पता है बेसिकली, हमें उसको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। बट कोई स्टार्टअप कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम नहीं जानते,
तो उस केस में आप क्या करो, सपोज कि मैंने कोई कंपनी ली XYZ, ठीक है, आप उस कंपनी के लिए काम करते हो। अब 1 या 2 लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे डालोगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालोगे? डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे कंपनी का नेम क्या है बेसिकली, उसके बाद ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी में क्या क्वालिटी है, यूनिकनेस क्या है, कंपनी का गोल क्या है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स कंपनी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। इससे क्या होगा, इससे 2-3 मेरे फायदे हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे कंपनी का डोमेन पता लग जाएगा। सपोज कि मैं वॉलमार्ट के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, तो वॉलमार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली, ठीक है, और XYZ में जिसमें आपने लास्ट टाइम काम किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन से मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये साइज इतनी बड़ी कंपनी थी, ये इसका जो मेन डोमेन है ये ई कॉमर्स डोमेन की कंपनी थी। तो ऐसे केस में क्या रहेगा कि मुझे एज अ इंडिविजुअल पता लग गया हायर करने टाइम कि इस बंदे को ई कॉमर्स एक्सपीरियंस तो है, तो मैं कंपनी के बारे में फिर थोड़ा सा सर्च करके मैं उस बंदे को रीच कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप किसी कंपनी के बारे में आप, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है हर कोई बड़ी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन वहां पे आप उसका जरूर डाल दें। उसके बाद हमारे पास आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होती है? अचीवमेंट्स होती हैं बेसिकली, सबको पता है क्या, कि यार आपने क्या वहाँ पे अचीव किया था, कि आपको क्या मेडल मिले थे, या फिर आपने क्या टारगेट अचीव करे थे। तो अलग अलग चीज़ों के अचीवमेंट अलग अलग तरीके से वेरी करेगी। सेल्स का अचीवमेंट क्या हो सकता है, यार लास्ट मंथ में मैंने इस प्रोडक्ट की इतनी सेल करी, इतना मार्जिन से मैंने प्रॉफिट कमाया, दैट्स अचीवमेंट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट। ठीक है, यार मैं उस प्रीवियस कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये बिल्ड किया था, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर हिम। तो ये सारी चीजें अचीवमेंट्स की आती हैं। तो अचीवमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हो, बहुत सही चीज है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल्स को कहाँ प्लेस करना है, ये बहुत ही ट्रिकी चीज होती है। तो इसको हम 2 चीजों में समझते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप अपनी एजुकेशन डिटेल अगर लास्ट में भी रख दोगे, नॉट अ इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके पहले प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपके जो भी आपने काम किया आप उसको पहले डिस्प्ले करोगे, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, तो मैं एज अ फ्रेशर किस बेसिस पे अपने आप को चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में हायर कर ले कोई, और एज अ टेक्निकल रिक्रूटर मैं क्या देखूंगा यार कि बंदे ने कुछ काम तो किया है नहीं, तो मैं इसको क्यों हायर करूँ। उस केसेस में एजुकेशन आपका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है डिस्प्ले करने के लिए। एजुकेशन को आप सबसे टॉप पे रखोगे, समरी के जस्ट नीचे। ठीक है, क्यों रखोगे? बिकॉज वहां पे आप सबसे अपनी बेस्ट चीजें बता सकते हो, यार कि मुझे एजुकेशन में मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये अचीव किया है। सपोज कि कोई आईआईटी से पास आउट है तो उसकी खुद में अचीवमेंट है, भाई मैंने आईटी से 9 CGPA ग्रैब किया है, या फिर मैंने एनआईटी से मैंने इतने नंबर अचीव करे हैं, मैंने मास्टर्स किया है, मैंने बीसीए किया, समथिंग जो भी किया उसने। तो एजुकेशन ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन एवर यू आर लाइक सबमिटिंग रिज्यूमे एज अ फ्रेशर। तो ये चीजें अपने दिमाग में जरूर रखना। उसके बाद एडिशनल चीजें क्या रहती हैं? एडिशनल चीजें हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं डालने के लिए। क्या डाल सकते हो आप? सपोज कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, दैट शुड बी योर एडिशनल अचीवमेंट, यू कैन पुट इन योर रिज्यूमे। ठीक है, या फिर आपको कुछ साइट में आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला है, आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो वो भी आप एडिशनल में डाल सकते हो। ऐसा टाइम मतलब आपका ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, जरूरी नहीं है। देन स्किल्स। अब स्किल्स में क्या रहता है कि सबसे ज्यादा लोग स्किल्स में गलतियां करते हैं। अब स्किल्स 2 तरीके की होती हैं बेसिकली, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। वो मैं हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। तो कौन सी स्किल कब और कैसे डालनी है, कब डालनी है, जरूरी है। और हमेशा ही स्किल्स दोनों तरीके की होनी चाहिए। सिंपल सिंपल बोलता हूँ, हार्ड स्किल्स में हम क्या चीजें देखते हैं। एज अ फुल स्टैक डेवलपर मेरी हार्ड स्किल्स क्या रहेंगी? फ्रंट एंड में मैं डाल सकता हूँ HTML, CSS, सैस डाल सकता हूँ, ये सारी मेरी फ्रंट एंड की स्किल्स हो गई हार्ड स्किल्स में। देन मेरी हार्ड में बैक एंड स्किल्स क्या हो सकती हैं? जो भी मैं बैक एंड लैंग्वेज यूज करूंगा मैं उसके बारे में डाल सकता हूँ, मैं नोट डाल सकता हूँ, PHP डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरी स्किल्स में आएगा। डेटाबेसेस में मैं डाल सकता हूँ अपना SQL, ओरेकल। तो ये सारी मेरी हार्ड स्किल्स हो जाएगी। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स इज मोर अबाउट योर रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनैलिटी एंड योर बॉडी लैंग्वेज बेसिकली। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी क्लाइंट्स या कंपनी होती है ना, वो रिज्यूमे से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स देखती हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि आप आईआईटी से पास आउट हो, 10 CGPA आपकी, आपके रिज्यूमे बहुत बढ़िया है, तो इस ये देख के मैं आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए तो बुला ही लूंगा।
लेकिन ना जब मैंने आपको सामने बुलाया, मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने आपसे 2-3 बातें करी, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बेटर नहीं है। लेकिन दूसरा एट सेम टाइम में एनआईटी बंदा है, फिर आईटी नहीं कर रखा, नॉर्मल बंदा पढ़ के आया है, बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो होता क्या है ना, जब हम हायरिंग करेंगे तो मुझे अपनी टीम जो भी हम क्रिएट करते हैं, तो एज अ टीम मेंबर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी टीम में कौन सा बंदा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, कौन अच्छे से टीम अप बिल्ड करके रह सकता है। तो सॉफ्ट स्किल्स अगर आपकी वीक हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वीक हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा लोअर साइड में चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार हैं, आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई भी डिबेट अपने आप से स्टार्ट कर दो, अपने 2-3 दोस्तों को पकड़ो, सेशंस करो, एक टॉपिक ले लो, बैठो, डिस्कस करो, बिकॉज सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और एक और चीज़, जितनी भी अच्छी क्लाइंट्स होती है, खासकर मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ। एप्पल हमेशा क्या देखता है, वो देखता है कि यार ये बंदा कितना क्रिएटिव है, ठीक है, इसके माइंड स्किल्स के कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें वो ज़्यादा ध्यान देता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही आज के टाइम में हायर कर रही है, बिकॉज सबको पता है एआई का ज़माना है, कोडिंग वहाँ से भी निकलवा के वो करवा सकता है। लेकिन अगर बंदा क्रिएटिव है, उसके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकता है, तो उनके लिए और भी तरीके से काम आता है। तो वो सारी चीज़ें देखती हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि फ्रेशर हो तो अपना हमेशा एजुकेशन स्टार्ट पे रखना है, जस्ट समरी के नीचे क्यों रखना है वो मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया। ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें रहती हैं। अब एक मैं सैंपल रिज्यूमे आपके सामने शेयर करूँगा, और उसको हम देखने वाले हैं बेसिकली कि एक रिज्यूमे बिल्ड करने टाइम हमें एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। सो भावना, कैन यू जस्ट शेयर द स्क्रीन ऑफ सैंपल रिज्यूमे? Yes, sure. या लेट मी नो जब हो जाए एक बार, ठीक है? Okay, Deepak. It is shared. ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे जो मैं एक रिज्यूमे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको ना उसका एजुकेशन देखना है ना कुछ देखना है। जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार बेसिकली ये क्या कर रखा है और ये क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले जो रेड मार्क्स आप जितने भी देखे हो, रेड मार्क्स की सबसे स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में है, बीच में मैंने कहीं नहीं करा है, एंड में मैंने कहीं नहीं करा है। तो ये क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब से ही हमेशा हमें अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करना है। ये चीज Excuse me, sir. या Sir, can you just zoom the screen? It is not visible clearly. ओके, भावना, कैन यू जस्ट जूम आउट द स्क्रीन? Yes, sure. या Is it okay now? Yes, ma'am. ओके, सो याद रखना ये बहुत ही की पॉइंट है। कैसा भी रिज्यूमे बिल्ड करो, अपना डिस्क्रिप्शन हमेशा ही एक्शन वर्ब से स्टार्ट करना है। अगर आपका करंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो एक्शन वर्ब ऑफ कोर्स प्रेजेंट में चला जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट डन हो चुका है, प्रीवियस प्रोजेक्ट है, तो हमेशा ही वो पास्ट में जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, मैं आप पहला देख सकता हूँ, रिसर्च यूजर ट्रेंड्स, डेवलप ट्रेनिंग, क्रिएट एंड इम्प्रूव। उससे पीछे वाले प्रोजेक्ट में देखा जाए तो जनरेटेड, कोलैबोरेटेड। देन उससे नीचे भी अगर मैं सारे प्रोजेक्ट्स में देखूं, एनालाइज, कोलैबोरेटेड, इवैल्यूएटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन आए कि यार कैसे स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना। तुमने क्या क्रिएट किया था, क्रिएटेड। आपने कुछ मैनेज किया था, मैनेज्ड। ठीक है, आपने वहाँ पे कुछ मेंटेन किया था, मेंटेन। तो एक्शन वर्ब से ही हमेशा ही अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है? और प्रेजेंट प्रोजेक्ट रहेगा तो ऑफ कोर्स वो प्रेजेंट टेंस में आपको उस तरीके से मेंशन करना है। सेकंड चीज आ रही है ओरेंज स्किल। अभी जस्ट मैंने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में समझाया। ठीक है? तो हार्ड स्किल्स क्या रहेंगे? जैसे कि यार मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैंने क्या करा था, मैंने करा था क्रिएट एचटीएमएल पेजेस। ठीक है? तो मैंने क्या क्रिएट किया था, मैंने एचटीएमएल पेज क्रिएट करे थे। तो एचटीएमएल इज अ हार्ड स्किल। ठीक है? अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो उसने क्या जनरेट करा होगा, जनरेट रिपोर्टेड ऑन एक्सेल। तो एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है? हार्ड स्किल्स हैं उसकी। ठीक है? तो आपने जो भी थ्रू आउट द रिज्यूमे
अपना आपको क्या करना है, जस्ट एक्शन वर्ब से उठा के आपने हार्ड स्किल्स में उसको बताना है कि मैंने ये क्रिएट किया था इस टूल के अंदर, मैंने ये मैनेज किया था इस टूल के अंदर, मैंने ये डेवलप किया था इस टूल के अंदर। तो इस तरीके से अपना हार्ड स्किल आपको वहां पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है नोट कलर, ये वाली चीजें हैं। एजुकेशन डिटेल आप जब भी डालते हो या फिर वो चीज डालते हो तो उसमें ये चीजें फॉलो नहीं होती, ठीक है। वो एक जेनरिक है, जैसे कॉलेज का नाम है, एजुकेशन का नाम है, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीजों की उसको एज जेनरिक फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। एजुकेशन का फॉर्मेट आप एक फॉलो कर सकते हो, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ये हम ऐसा फॉलो करते हैं। कैसे कर सकते हो, सपोज एग्जाम्पल ऑफ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बैचलर या मैंने मास्टर जो करी थी उसको लिखा, तो मैंने क्या लिखा, बैचलर्स इन मास्टर साइंस, कॉमा डालूंगा, उसके बाद कॉलेज का नाम डालूंगा XYZ, कॉमा डालूंगा, लोकेशन डाल दूंगा जो उसका हेडक्वार्टर है या फिर जहां से आपने किया है, हैदराबाद, बैंगलोर, जो भी आपने किया है उसका मैं फिर से कॉमा डालूंगा। मैं वहां पे सिर्फ पास आउट ईयर डालूंगा, पूरा ईयर ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, लाइक मैंने यहाँ से यहाँ तक किया ना। जब आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो मेंशन करना है, लेकिन जैसे जैसे आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो वो चीज़ आप वहाँ पे नहीं मेंशन करोगे। और एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप फ्रेशर हो ना तो आप एजुकेशन में डाल सकते हो यार कि मैंने कॉलेज यहाँ से करी थी, मैंने 12th यहाँ से करी थी, मैंने डिप्लोमा यहाँ से करी थी। बट जैसे जैसे आपका करियर बिल्ड होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ प्रोसेस होता रहेगा, तो ध्यान रखना एजुकेशन में सिर्फ मास्टर्स और बैचलर ही दिखाना है, और फालतू की कोई एजुकेशन 10th की 12th की ये गलती से भी मत डालना, हमें उसे मैटर नहीं करता। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लोग मास्टर्स डाल के भी छोड़ देते हैं, बट आप बैचलर्स और मास्टर हमेशा डालो, दैट्स इनफ। आप सर्टिफिकेशन सारे डाल सकते हो बट एजुकेशन में और चीजें डालने की जरूरत नहीं है। 2 मास्टर या दो, कुछ लोग 2 मास्टर्स भी करते हैं, वो डाल सकते हो आपको, लेकिन 10th 12th के मार्कशीट के नंबर हो गए या फिर उसका कहाँ से क्या था वो कोई नहीं पूछने वाला, जब आप 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर में क्या होता है, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप चाहे तो लिख लो, कान खोल के सुन लो। क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सपोज कि मेरे को किसी कंपनी ने फुल स्टैक हायर करा, डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, मैं ये करता था, मैं ये करता था। अब एक बार बताओ, जिस कंपनी ने मुझे फुल स्टैक डेवलपर हायर किया है, तो वो तो मुझे भी पता ना है, जब तुम्हें एज अ फुल स्टैक डेवलपर किया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट एंड बैक एंड में रही होगी, डेटाबेसेस में रही होगी, तो वो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं बता रहा कि तुमने क्या किया था, वो तो तुम्हारा टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है ना जस्ट। तो इससे मुझे तो कुछ पता नहीं लगा कि तुम लास्ट प्रोजेक्ट में क्या किया। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है, हमें उसके बदले क्या चीजें वहां पे मेंशन करनी पड़ती है, मैं वो चीजें यहाँ पे क्लेरिफाई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रिज्यूमे में गुडविंस ऑर्गेनिक्स का जहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर आप जितनी भी जगह देख रहे हो कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब इसका क्या मतलब होता है कि हम हमेशा ये चीज बताते हैं यार कि मैंने सपोज कि फुल स्टैक डेवलपर में मैंने बैकएंड में ये टूल का यूज किया था, इससे इस वेबसाइट की 20% एफिशिएंसी बढ़ गई। तो दैट्स मेरा जो मैंने अचीवमेंट वहां पे बेसिकली, या फिर मैंने जो काम किया वो मेरा मेन काम था। मैंने बैकएंड में क्या टूल यूज करके मैंने उससे क्या कंपनी को प्रॉफिट दिया, वो मेरा काम था। मार्केट में क्या कर सकता हूँ, मैंने सेल्स में एक्सेल और पावर पॉइंट का यूज करके मैंने एनालाइज किया और इससे कंपनी की 15% की ग्रोथ हो गई। तो ये चीजें आपको शोकेस करना है, ना कि आप ये चीजें बताओगे कि यार मैंने ये टूल, मैं एज अ फ्रंट में ये टूल करता था, बैक एंड वो करता था, वो तो आपने अपने स्किल्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, वो मुझे टाइटल देख के समझ में आ जाएगा कि एज अ पाइथन डेवलपर आपने पाइथन ही यूज किया होगा। तो वो चीज़ से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे क्या लेना देना है कि उससे कंपनी को आपने क्या इम्पैक्ट दिया, आपने कंपनी के लिए क्या वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट किया, दैट्स द मेन थिंग। तो हमेशा ही कैलकुलेशन को एस्टिमेशन करके डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मैंने ये टूल करके मैंने इस बग्स को फिक्स कर दिया, इससे वेबसाइट स्मूथ हो गई और इसमें ये रिजल्ट शोकेस किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। कोई कलर के बारे में कंफ्यूजन होगा आप बाद में पूछ सकते हो, सब क्लियर कर देंगे बाद में। देन सियान कलर, सियान कलर इज बेसिकली क्या चीजें दिखा रहा है कि
जो भी आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया, सपोज कि 15% का जनरेट किया रेवेन्यू, ठीक है, मैंने ये टूल लेके मैंने 20,000 बच्चों को पढ़ाया, इससे मेरा ये फायदा हो गया। तो जो भी चीज हम शोकेस कर रहे हैं वो क्या हुई, फेवर में गई, ऑप्टिमाइज हुई, इंप्रूव हुई, वो चीजें हम सीएन कलर से यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे क्या दिखा रहे हैं कि भाई मैंने एक्सेल और पावर पॉइंट का यूज किया, तो जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड रिपोर्ट बाय एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज और इंक्रीज 15% ऑफ दिस कंपनी, या फिर कोई भी बोल सकती है प्रोडक्ट। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कलर कवर कर दिए। रेड कलर मैंने क्या क्रिएट कर दिया, मैंने बोला कि मैंने क्रिएट किया या फिर मैंने जनरेट किया। क्या जनरेट किया मैंने, एक्सेल और पावर पॉइंट हार्ड स्किल को मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। वहाँ से मैंने क्या किया, इम्प्रूव किया, इंक्रीज किया, वो मैंने सीएन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। देन मैंने 20% इंक्रीज किया, तो वो जो नंबर है मेरा वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना डिस्क्रिप्शन शो करना है, ठीक है। अब हर जगह क्या होगा कि आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, कुछ चीजें क्वांटिटेटिव होती हैं बट कुछ चीजें क्वांटिटेटिव नहीं होगी। तो उस केस में आपको ये दिख सकते हो यार, इम्प्रूव वेब पेजेस, ठीक है, इम्प्रूव द फ्लो ऑफ किसी भी चीज का, जो भी चीज रहेगी उस तरीके से आप वहाँ पे ऑपरेशंस को मेंशन कर सकते हो। अब आती है येलो स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की जो मैंने बात करी थी वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होगी कि यार मैंने अपने टीम लीड में ये चीजें करी, जो टीम लीड वर्ड आया वो क्या, मेरा सॉफ्ट स्किल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट किया, ठीक है, इस टूल में इतनी परसेंट एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए। तो जो कोलैबोरेट किया मैंने किसी के साथ, वो मेरी क्या थी, मेरी सॉफ्ट स्किल्स थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम हार्ड स्किल्स दिखा पा रहे, सॉफ्ट स्किल्स भी दिखा पा रहे, उसके बाद हमने क्या बेसिकली वहां से अचीव किया, जनरेट किया, वो हम दिखा पा रहे हैं। तो सारे पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन में कवर कर दे रहा हूँ। इससे मुझे एज ए इंडिविजुअल मुझे बंदे से भी ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, मैं खुद देख पा रहा हूँ कुछ। वरना क्या रहेगा, मैं 10 घंटे बिठाऊंगा कि यार तूने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या किया, मुझे पहले बता तो सही। अब वहां पे अगर उसने कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, एक लाइन भूल गया, हो सकता है मेन वर्ड ही भूल जाए, यार मैंने ये भी किया था, और वही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीजें वहां पे हमें ध्यान देनी है। तो शॉर्ट, सिंपल, और इस तरीके से लाइन जनरेट करो कि वो रहे। ऐसा मत करो कि ग्रामर यार इंग्लिश में बस मुझे एक लंबा सा पैराग्राफ लिख देना है, मैंने ये किया था। उससे बढ़िया एक लाइन लिखो, लेकिन उस लाइन में तुम हर चीज बता पाओ, यार मैंने ये किया था, ऐसे किया था, ये हुआ था। दैट्स द मेन थिंग whenever you something write in your description। याद रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पे मेरे सारे कलर्स क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करें। सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी इंसान की, देख सकते हो ये सारे कुछ स्किल्स हैं। लीडरशिप स्किल्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गई। डीएसए जब भी करते हैं ना तो कहते हैं यार प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो या फिर टेक्निकल राउंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आ गया, तो वो भी एक स्किल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन की मैं बात कर चुका हूँ। कम्युनिकेशन स्किल अगर खराब है तो तुम कोई भी स्किल यहाँ पे अच्छी कर लो, फायदा ही नहीं करेगी। क्योंकि जब तुम मुझे कुछ बता ही नहीं पा रहे तो मैं क्या करूंगा तुम्हारा भाई स्किल्स के बारे में, तुम्हें इतना अच्छा आता है ये टेक्नोलॉजी, या फिर तुम्हारा कोई चीज इतनी ज्यादा आती है, जब तुम मुझे बता ही नहीं पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी हेजिटेट मत करना। और कम्युनिकेशन में स्किल में एक और चीज बता रहा हूँ, जब भी कोई इंसान तुमसे कुछ पूछ रहा है ना, उसको घुमाओ मत। अगर उसने कोई चीज पूछी है, एग्जैक्ट आंसर अगर 2 वर्ड में भी तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, बस खत्म कर दो। जरूरी नहीं है हर चीज का हमें डिस्क्रिप्शन देना। मैंने पूछा तुमने ये टूल का क्या यूज किया था, क्या किया था, बस बता, खत्म। काफी लोग क्या करते हैं ना, कहानी बनाने लग जाते हैं, ऐसा था वैसा था। वैसा मत करना, और खासकर इंटरव्यूज में बिल्कुल मत करना। वहां पे जितना जल्दी शॉर्ट एंड सिंपल एग्जैक्ट चीजें रखोगे उतना फायदा है, ये चीजें याद रखना। तो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो तुम देख सकते हो, ये चीजें तुम भी ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। क्या क्या यहाँ से किसके पास कौन सी स्किल्स है और कौन सी स्किल को डेवलप कर सकता है, ये चीजें भी तुम यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, जो मैं अभी बता चुका हूँ। एक बार उसका समराइज वर्जन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। हार्ड स्किल्स से वही चीजें बता रहा है जो कि क्वांटिफाइबल है बेसिकली, जो आप बेसिकली क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारी स्किल्स जो भी हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, मुझे फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, मेरी फॉरेन लैंग्वेज की मेरी स्किल्स हो गई, ठीक है। मेरे मैथ एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया है, ये मेरी स्किल्स हो गई। कोई मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मेरी स्किल्स हो गई।
ये जो भी सारी चीजें मेजर कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, जो कि अनक्वांटिफाइबल होती हैं बेसिकली, और जो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशंस, उसके बाद आपके लीडरशिप, टीम वर्क, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी स्किल्स होती हैं। और ये इंसान कभी भी खुद जस्टिफाई नहीं करता। ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल तब डेवलप होती हैं जब एक आप किसी भी कम्युनिटी ग्रुप की चीजों के अंदर घुसोगे, तब आपको पता लगे यार ये मेरी स्किल्स ये बेटर है या मेरी चीज ये बेटर है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एज अ इंडिविजुअल या कोई भी नया बंदा किसी ऑफिस में जाता है तो उसको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ नहीं आता, इवन तो वो अच्छी कंपनी भी होगी। क्यों? जिंदगी भर वो इंट्रोवर्ट रहा, अब वो उसको टीम लीडर बना दिया जाएगा तो कैसे टीम लीड करेगा? उसके बाद जब 5 बंदे रिपोर्ट करने आएंगे तो उसको तो पता ही नहीं यार मुझे बात कैसे करनी है, टीम कैसे लीड करते हैं, मैं एग्जैक्टली पूछूं क्या। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इंसान सीखता है। तो अभी से ही बहुत अच्छा टाइम है, अपने पास एक ग्रुप हमेशा डिस्कस करो, पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल। वहाँ पे आप अपना टाइम दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ रिज्यूमेज मेरे पास सामने हैं, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, लाइक इसमें क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक किसी भी कैंडिडेट का एक रिज्यूमे आया। अब यहाँ पे मैं क्या चीजें देखूंगा क्या चीजें नहीं देखूंगा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक फ्रेशर का रिज्यूमे है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या चीजें बोली थी, समरी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स समरी वहाँ पे है। उसके बाद ये टेम्पलेट कौन सा इन्होंने चूज करा है, ये है स्प्लिट टेम्पलेट बेसिकली, आधा पोर्शन उधर है थोड़ा पोर्शन इधर है। ठीक है, उसके बाद फोटो देखो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सब्जेक्टिव, आपका मन है लगा दो, नहीं मन है मत लगाओ। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, इवन तो ये ब्लर है बट मैं देख पा रहा हूँ कि ये सिंगल अल्फाबेट है नेम का, बल्कि नेम यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेम एटलीस्ट मैंने कहा था पूरा होना चाहिए था, तो वो एक चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। दूसरी चीज मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्टूडेंट। कभी कभी स्टूडेंट नहीं लिखते, ठीक है, जब आप जॉब देने लेने जा रहे हो तो आप स्टूडेंट कोई जॉब लेने नहीं जाता, जॉब लेने एज अ प्रोफेशनल जाओगे ना, तो आप क्या लिख सकते हो, परसुइंग सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक, परसुइंग थर्ड ईयर ऑफ बीसीए। ठीक है, तो ये चीजें मेंशन करो कि आप अभी किस स्टेज पे हो। स्टूडेंट तो 10वीं क्लास का भी हो सकता है, कोई 5th क्लास का भी हो सकता है, कोई एमटेक का भी हो सकता है, कोई आईआईटी का भी हो सकता है, तो सारे स्टूडेंट है। तो इससे मुझे कुछ हिंट नहीं मिल रहा, तो इससे मैं बढ़िया मैं क्या मेंशन करूंगा, परसुइंग थर्ड ईयर ऑफ बीसीए, सेकंड ईयर ऑफ बीसीए, समथिंग लाइक दैट, ये चीजें मेंशन कर दूंगा। अगर मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं वहां पे भी सब चीजें मेंशन करूंगा ही नहीं। ठीक है, टाइटल मेंशन कर सकता हूँ, सपोज कि अगर कि कोई 2 या 3 साल से पाइथन डेवलपर है तो वो लिख सकता है एज अ पाइथन डेवलपर, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अच्छी चीजें क्या है वो मैं बताता हूँ। देख पा रहा हूँ कि एड्रेस सही तरीके से लिखा हुआ है, शॉर्ट एंड सिंपल जैसा मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक शेयर हैं, वो भी सही है। समरी, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि एज अ फ्रेश तुम्हारे पास समरी चीजें नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि तुमने काम नहीं किया है, तुमने कोई प्रोजेक्ट पे अभी ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो क्या करो, अपनी सबसे जो बेस्ट हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स है उसका एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको यहाँ पे लिख दो। I'm a curious learner and an aspiring data scientist familiar with the Python and its library, MySQL, mathematics, data processing, and machine learning, hardworking, organized and disciplined. सिंपल शॉर्ट सही है, कोई यहाँ पे ज्यादा फालतू की लाइनें मैंने बोली थी ऐड नहीं करनी है, नहीं करा है, छोटा सा डाल दिया पहले इनको। उसके बाद एजुकेशन डिटेल टॉप में मैंने बोला था अगर आप फ्रेशर हो तो हमेशा डालो, जो कि यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखी है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी मेंशन कर रखा है। अब काफ़ी लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं, ये भी सब्जेक्टिव है यार, कि नंबर ग्रेड्स जो हम डालते हैं वो ज़रूरी है या नहीं है। अगर टॉपर हो, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हाईलाइट करना चाहते हो डाल दो, ज़रूरी नहीं है, कोई तुमसे नंबर नहीं पूछेगा। अगर अच्छे नंबर आए हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट नंबर जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऑन कैंपस वाले सिनेरियो में जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑन कैंपस तुम्हारे नंबर के बेस पे ही तुम्हें जज करती है, यार ये बंदे ने इतने अच्छे नंबर्स लिए हैं तो इसका ये टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो हम इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन केसेस में जरूरी है, बट एज ऑफ कैंपस जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, किसी को रिज्यूमे शेयर कर रहे हो, जरूरत नहीं है। वो जब तुम अपने डॉक्यूमेंट शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो देख सकता है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आपने अभी फ्रेशर रिज्यूमे है, अभी स्कूल, अभी कोई जॉब नहीं लगी है तो हाई स्कूल के नंबर डाल दिए हैं, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, स्किल्स साइड में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट बुरा नहीं है, यूज़ कर सकते हो। अपने यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हार्ड स्किल्स भी मेंशन कर रखे हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो इन जनरल मैं एक अच्छा सजेशन दूंगा, हमेशा सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को स्प्लिट करके लिखो। वो क्यों लिखेंगे वो मैं जब एक रिज्यूमे शेयर करूंगा तब मैं बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना। और मैं बहुत अच्छा वे बता सकता हूँ कि स्किल्स को और कैसे मेंटेन करके लिख सकते हैं, बाकी ये भी बुरा तरीका नहीं है, इट्स अ गुड वे। देन यहाँ पे सर्टिफिकेशंस, ऑफ कोर्स जितने आज तक तुमने पढ़ाई करी सारे डाल दो, वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है किसी भी रिक्रूटर को, या कि क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है कि समटाइम्स लाइक कि मैं किसी गूगल क्लाउड का मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहा हूँ, तो अगर उसके पास गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन है तो मैं उसको सबसे पहले रीच करूंगा, इवन तो उससे अच्छे या सीनियर कैंडिडेट भी है मेरे पास, बट गूगल क्लाउड का उसके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाने से उसकी वैल्यू बाकी कैंडिडेट से बढ़ जाएगी। तो अभी तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, जितने सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कर सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशंस में ऑफ कोर्स जो अचीवमेंट्स वगैरह हो की मैंने बात करी थी वो सब यहाँ पे डाल रखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम भी डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब मेरे सेकंड रिज्यूमे एक और है। अब मैं तुम्हें एक बहुत जेन्युइन सा डिफरेंस बताऊंगा इस रिज्यूमे में और इस रिज्यूमे में। बंदे क्या करते हैं, कहते हैं यार ये ऐसा रिज्यूमे ना देखने में बहुत प्यारा लग रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब इस वाले केस में होगा क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस बताता हूँ होता क्या है। स्किल्स डाल देते हैं, एजुकेशन वगैरह डाल देते हैं, और बाकी बहुत सारे स्पेस खाली पड़ा रह जाता है, तो अब वो देखने में बहुत बेकार लगता है। तो रिज्यूमे का जब भी टेम्पलेट चूज करो तो रिज्यूमे का टेम्पलेट ऐसा वाला चूज करना जिसमें तुम्हारा रिज्यूमे कम भी हो ना तो भरा भरा लगे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा चीजें लिखने को नहीं है, सिंपल सा है, सिंगल लाइन प्लेन फॉर्मेट फॉलो करो। इसमें क्या रहेगा, दो दो लाइनें भी अगर सारी चीजों की मैं डाल दूंगा तो एक तो पेज मेरा आराम से बन जाएगा, और मेरे को रिज्यूमे ज्यादा बड़ा बनाना भी नहीं है। अगर ये वाला रिज्यूमे में इस एजुकेशन डिटेल को मैं और थोड़ा समराइज करके लिख सकता हूँ तो मैं और चीजें ऐड कर सकता हूँ, बट एक से दो पेज है तो चलो काफी इनफ है। बाकी जितना ज्यादा समराइज रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। जैसे कि अब सेकंड पेज में मेरे को इस वाले फुटर की जरूरत, हेडर्स की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसमें रिमूव कर सकता हूँ जिससे मेरा स्पेस थोड़ा और अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, और बस कुछ नहीं है। तो इस वाले रिज्यूमे में समरी है, डिटेल्स ऊपर मेंशन है और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फुल नेम है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन कर रखी है, लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन कर रखी है, वेल एंड गुड। और लिंक्डइन प्रोफाइल देखो यहाँ पे क्या है ना, कभी भी पूरा यूआरएल नहीं डालते, इसको हमेशा ही यूआरएल क्रिएट करके डालो। यहाँ पे अपना लिंक्डइन लिख दो और उसके अंदर क्रिएट जनरेट करके अपना यूआरएल डाल के छोड़ दो, वो एक अच्छा सिंपल और तरीका होता है किसी भी चीज को शो करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, कभी भी पूरा लिंक उठा के मत कॉपी पेस्ट कर देना, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो उसको कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। कोई भी एक वर्ड लेना, जैसे कि मेरा नाम दीपक है तो दीपक डॉट लिंक्डइन लिख देता हूँ मैं, या फिर मैं सिंपल लिंक्डइन डॉट इन लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। उसके अंदर मैं यूआरएल क्रिएट करूंगा और मैं उसके अंदर अपना पूरा जो भी मेरा लिंक्डइन का यूआरएल रहेगा मैं उसको मेंशन करूंगा। तो इट्स अ बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर लिंक्डइन प्रोफाइल और एनी काइंड ऑफ लिंक लाइक गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, कुछ भी अगर आप मेंशन कर रहे हो। प्रोफाइल्स हैं, स्किल्स हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशन डिटेल्स है। अब इस केस में देखो क्या है, एजुकेशन डिटेल्स को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं ये मैं बताऊंगा। इस तरीके से एजुकेशन डिटेल नहीं लिखेंगे हम। अब क्यों नहीं लिखेंगे, देखो होगा क्या है ना, जो चीजें तुमने यहाँ पर बताई वो चीजें हम स्किल्स में भी पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे नहीं बताना, क्योंकि जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जब मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं खुद तुमसे पूछ लूंगा कि तुम्हारी कौन सी स्किल कितनी बेटर है। तो इतना मुझे इस तरीके से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं शॉर्ट सिंपल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं सिखा देता हूँ, स्किल्स कैसे लिखे जाती है। हार्ड स्किल्स कैसे लिखेंगे, मैं डालूंगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में मुझे कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, HTML आता है, CSS आता है, SAS आता है, डन। बैक एंड में मुझे कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, डन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे कौन कौन सी आती है, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, 4 मैंने लिख दी, डन। डेटाबेस में मुझे क्या क्या आता है, ओरेकल आता है, SQL आता है, डाल दिया, डन। उसके बाद मुझे अदर्स में क्या आता है, गिट आता है, गिट लिख के रख दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख के छोड़ दिया, इनफ।
इससे क्या होगा, इससे एक तो तुम्हारा जो भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा बन जाएगा, और तुमने क्या कर दिया, ब्रेक करके अपने स्किल्स को वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसमें तुम्हारा माइंड भी ना कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सी स्किल्स मेरी रह तो नहीं गई, और मैं कौन से स्किल को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, कौन सी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तुम एज अ वेब डेवलपर हो तो वहाँ पे फ्रंट बैकएंड का रोल बहुत बढ़ जाएगा, तो मैं देख सकता हूँ इसको ये नोड आता है, इसको रिएक्ट आता है, इसको एंगुलर आता है, हाँ ठीक है, ये कैंडिडेट को मैं रीच कर सकता हूँ। डीएसए या फिर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैंडिडेट चाहिए, देख रहा हूँ डीएसए में इसको पाइथन आती है, सी प्लस प्लस एक ओप्स की लैंग्वेज आती है, जावा आती है, हाँ ठीक है, इसको मैं रीच कर सकता हूँ। ठीक है, इसको गिट आता है कि नहीं आता, इसमें मेंशन कर रखा है, अगर इसमें गिट हाँ इसको आता है, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ। इस तरीके से उसको ब्रेक करके लिखेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैं क्या देख रहा हूँ कि एक्शन वर्ब्स ने यहाँ पे यूज करे हैं, अटेंडिंग एंट्री लेवल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या लिखी, गेन एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड एडुकेट। अब ना यहाँ पे हो क्या रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने नॉलेज किस चीज के लिए, कोई टूल था, कोई स्किल था, क्या था। ठीक है, तो वो चीजें मैंने जैसा कि अभी बताया था कि हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, वो चीजें मेंशन करो, तो वो चीजें यहाँ पे लैग कर रही हैं, वो चीजें यहाँ पे डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी तरीका सही है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ, एक्शन वर्ब के साथ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर रखी है, पार्टिसिपेटिंग इन टीम मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग सेशन टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट अपडेट्स एंड चेंजेस। तो ये लाइन फिर भी ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही है, पार्टिसिपेंट टीम मीटिंग, हाँ तो टीम मीटिंग यानी कि कोलेब्रेशन में ये बंदा था, उसके बाद इसने ये प्रोडक्ट अपडेट किया, तो प्रोडक्ट अपडेट एंड चेंजेस तो यहाँ पे चीजें आ गई, बट उससे क्या हुआ, कुछ एक फायदा हुआ, इंक्रीज हुआ, कुछ ऑप्टिमाइज हुआ, वो चीजें यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं लिख सकता था कि प्रोडक्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन चेंजेस एंड इट ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एफिशिएंसी या प्रोडक्ट आउटकम्स। तो इस तरीके से हम वो चीजों को यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के साथ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हमारे पास दूसरे क्या एजुकेशन डिटेल्स हैं, बता चुका हूँ एजुकेशन डिटेल कैसे रखनी थी, तो वो भी आप देख सकते हो, सर्टिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ पर है, कर सकते हो। तो ये रिज्यूमे में मुझे काफ़ी चीज़ें सही लग रही हैं, जो चीज़ें थी मैं बता चुका हूँ, स्किल्स यहाँ पे ठीक होने की ज़रूरत है, बाकी एक दो चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाएगा, बेसिकली वो चीज़ें। अब यहाँ पे मैं टेक महिंद्रा कंपनी को जानता हूँ, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम जो सेकेंड कंपनी है विविन प्राइवेट लिमिटेड, अब इस कंपनी के बारे में भाई मैं नहीं जानता, तो अब मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि किस डोमेन की कंपनी है, कंपनी में क्या करती है, क्या बनाती है, कितनी बड़ी कंपनी है। तो मैं इस कंपनी के जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले लिख दूंगा कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन, अबाउट कंपनी, ये कंपनी ये करती है, इसका ये है, तो एक या दो लाइन में इसको मैं जस्टिफाई कर दूंगा, दैट्स इट। अब ये भी मेरे पास एक रिज्यूमे है, अब इस रिज्यूमे में कुछ गलतियां हैं, वैसे क्या गलतियां हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात की हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज एमएल सर्चर प्रेजेंट सॉफ्टवेयर के बाद ये चीजें जो लिखी गई हैं, इसमें भी वही सेम चीज मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पे भी वो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में नहीं पकड़ पा रहा हूँ। पहली चीज तो वो एक गलती है, बाकी समरी बहुत सही लिखी हुई है, यहाँ पे होनी चाहिए, नाम, फोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल गलत है, बता चुका हूँ कैसे लिखना, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। गिटहब में भी हम सेम चीज कर सकते हैं, और मीडियम अकाउंट, तो ये सब चीजों को हम क्या करेंगे, प्रिसाइज करके लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, उसका यूआरएल क्रिएट करके हाँ, ईमेल का कभी भी ऐसा मत करना, बिकॉज ईमेल क्या होता है कि मुझे पूरा कॉपी करके जो मेल पे रखना होता है, या फिर मुझे पढ़ना हो के मुझे किसी और सोर्स से भी उसको ईमेल भेजना पड़ सकता है ना, तो इसलिए ईमेल तो मैं पूरा देखूंगा, बट मैं गिटहब, लिंक्डइन, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में देखूंगा। एजुकेशन डिटेल, स्किल्स डिटेल, प्रोजेक्ट अंडरटेकन, ट्रेनिंग वर्कशॉप, अचीवमेंट, एक्स्ट्रा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम ये चीज फॉलो कर सकते हो, अगर तुम फ्रेशर हो तो एजुकेशन डिटेल टॉप में डालो, और अगर नहीं हो तो भी एजुकेशन डिटेल पर बेस्ट जो जगह होती है डालने की वो कहाँ होती है, समरी के जस्ट नीचे डालो टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद डाल दो एजुकेशन डिटेल्स, या फिर जस्ट समरी के नीचे एजुकेशन डिटेल्स डालो, फिर टेक्निकल स्किल्स डालो, मतलब टेक्निकल एजुकेशन जस्ट समरी के नीचे आने जरूरी है, उसके बाद अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी है वो डालो, बाकी ये सारी चीजें अचीवमेंट वगैरह वगैरह ये लास्ट में डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक फॉर्मेट अगर फॉलो कर लोगे तो कभी माइंड कंफ्यूज नहीं होगा कि यार मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी चीज कहाँ रखनी है,
नहीं आएगा। यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स में अब टेक्निकल राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके बाद टूल्स है, ये प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर रखा है स्प्लिट करके, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो कुछ चीज़ें इस रिज्यूमे में अच्छी थी, कुछ चीज़ें उस रिज्यूमे में अच्छी थी, तो ओवरऑल यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो हम देख सकते हैं। देन मेरे पास एक और यहाँ पे रिज्यूमे है। अब रिज्यूमे में ये फादर्स मदर नेम डालने की जरूरत नहीं होती, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी पहली बात तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सब्जेक्टिव भी होती हैं और ये थोड़ी सी प्राइवेसी की बात भी होती है, तो ये सारी चीज़ों को नहीं मेंशन करना है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आधार कार्ड मंगवा लूँगा, डिटेल्स सारी चेक करवा लूँगा, बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनल एड्रेस में पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, ये नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, नॉट अ बैड ऑप्शन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालते हैं, डाल सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सब चल जाएगा। हॉबीज डाली हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, डालनी चाहिए। लैंग्वेज नो, और सुनो हॉबीज कभी भी वो मत डाल देना जो कूल लगने के लिए लग रहा हो, काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। मेरे दोस्त ने क्रिकेटर डाला है, सिंगिंग डाला, मैं भी डाल देता हूँ। जब तुम हायरिंग होगी और मैं तुम्हारे क्रिएटिव माइंड को चेक कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारी हॉबीज़ के ऊपर तुमसे मैं कुछ करवा लूँ, या फिर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दे दूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तुम्हारे हॉबीज़ के ऊपर होगा। तो कूल बनने के चक्कर में ये गलतियाँ मत करना, छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत काम आती हैं, तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ये यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है थोड़ा-सा, बिकॉज़ ये क्या हो रहा है ना, पैराग्राफ फॉर्म में चला गया, अब इससे मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मैं इसको कैसे मैं टाइटल को अलग कर सकता हूँ, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा मैंने ये करा था, उसके नीचे मैं एक लिंक डाल दूँगा। तो एक मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक फॉर्मेट के थ्रू उसको मेंशन करूँगा, तो मुझे समझना ईज़ी रहेगा। हो सकता है कि मैंने टाइटल देखा और मुझे डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत थी, मैं सीधा लिंक जाके देख लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या है, देखना पड़ेगा ध्यान से, यार यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पर एक लिंक है, तो ऐसे में बहुत टाइम होगा कि स्किप हो जाएगा, तो ये चीज़ें याद रखना। वर्कशॉप्स अटेंड करे हैं, डाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे-जैसे आगे जाओगे, बट इनिशियल स्टेज में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अचीवमेंट्स डाली है, अच्छी चीज़ है। की स्किल्स डाल सकते हो, ये देखो ये चीज़ मैं जो कह रहा था वो यहाँ पे अच्छी है। क्या चीज़ है यहाँ पे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में जो चीज़ें मेंशन करी गई थी सारी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर रखी है। डिक्लेरेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकते हो, कुछ पीछे रिज्यूमे से लिख सकते हो, मिला-जुला के अगर हम एक हाइब्रिड बनाएँगे तो प्रॉपर अच्छा रिज्यूमे बनेगा। अब हम बात करें लिंक्डइन क्यों ज़रूरी था, देखो। सबसे पहले अगर लिंक्डइन नहीं बना है, बना लो और प्रोफाइल कंप्लीट करो। बैनर लगा सकते हो, मर्जी है, लेकिन एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर ज़रूरी है। प्रोफाइल पिक्चर इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरह मत लगा देना, नाचते हुए शादी में दूर की पूरी फ़ोटो डाल रहे हैं, पोर्ट्रेट फ़ोटो डाल रहे हैं, वैसी नहीं डालनी। फोटो ऐसी लो पासपोर्ट साइज का तुम्हारा कवर हो जाए एरिया, मतलब तुम्हारा हेड, चिन और तुम्हारा शोल्डर्स उसमें प्रॉपर विजिबल हो, शक्ल प्रॉपर दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो 2-3 बंदों को साथ में लगा रहे हैं, नहीं, हाथ की फोटो डाल रहे हैं, पैरों की फोटो डाल रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर पासपोर्ट साइज जितना कवर हो पा रहा है, एक अच्छी साफ सुथरी फोटो वहां पर डालो। कॉन्टैक्ट और कनेक्ट डालो। लिंक्डइन में अगर मुझे प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना भी डालो, काफ़ी लोगों को प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डाल दें, ज़रूरी है। और जॉब ढूंढने के लिए, इंटर्नशिप ढूंढने के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, वो आज के टाइम पे लिंक्डइन है। क्यों है ज़रूरी है, देखो अगर मेरे को किसी अच्छी कंपनी में जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कंपनी के लोग ढूंढ लूँगा। मुझे लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं मिलने वाले, मुझे वैसे लोग कहाँ मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे। तो मैंने देखा है एप्पल के बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कुछ हैं, कनेक्शंस बन गए हैं, तो मैं इनसे आइडिया ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। उसके बाद अपने आप को एंगेज रखो। दिन का अगर एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी जा रहा है, तो दिन का एक कुछ भी एंडोर्समेंट, रिकमेंडेशन एक लिंक्डइन पे चला जाएगा, तो वो भी बुरा नहीं है, तो वहाँ पर भी टाइम दे सकते हो। ऊपर से अगर तुमने आज कोई भी एक कोडिंग क्वेश्चन किया है, ठीक है, तुमने आज कोई अपनी नई स्किल सीखी है, तुम उसके बारे में लिंक्डइन पे जाके शेयर करो। इट डजंट मैटर एक लाइक आ रहा है, कोई देख रहा हो, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जब तुम 1 साल बाद देखोगे ना, तुम्हारे को एज़ अ जर्नी तुमने क्या मेहनत करी है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और कोई तुम्हारा लिंक्डइन अगर चेक करेगा, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, यार ये बंदा मेहनत करता है, अपनी स्किल शेयर करता है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम किसी को जाके वहाँ पे एंडोर्समेंट दे रहे हो, तो तुम्हारे पे भी आके कोई देगा। उसके बाद लिंक्डइन पे ग्रुप्स बनाओ।
जैसे कि अगर मैं पाइथन डेवलपर हूँ तो मैं पाइथन डेवलपर के 10 मुझे ग्रुप मिल जाएंगे। ग्रुप्स में जाओ, अगर पाइथन के ग्रुप में जाऊंगा तो मुझे पाइथन के बारे में ही नॉलेज मिलेगी। अगर वहां से कोई पाइथन की जॉब आ रही है, वैकेंसी आ रही है, तो मुझे उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। पाइथन की कोई स्किल्स के बारे में मुझे नॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही करके 5-10 ग्रुप पर्टिकुलर जितने तुम कर सकते हो करो, और ग्रुप में इंगेज भी रहो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते तो एक जाके किसी पे लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, कनेक्शंस बनाए, बंदों से बातचीत करी, तो एक अच्छा तुम्हें माहौल मिलेगा, एक अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिंज बोल नहीं आता। लिंक्डइन पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हर चीज होती है। उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजर प्रोफाइल्स तुम्हारी बूस्ट होती जाएगी, जैसे जैसे तुम एंगेज होते रहोगे तुम्हारी चीजें होती जाएंगी। और लिंक्डइन पे हमेशा ही प्रोफेशनल बिहेव करना है। किसी को हाय हेलो लिख दिया, यानी मैसेज नहीं कर रहा, दिन में 10 मैसेज ठोक दिया हाय हाय हाय, नहीं, ऐसे नहीं करना है। लिंक्डइन बहुत ही प्रोफेशनल तरीका होता भी होता है। बंदे का रिप्लाई आना होगा, आ जाएगा। 2-3 दिन में नहीं आता, एक बार हम डाल सकते हैं, बट पीछे नहीं पड़ना है किसी के भी। बहुत एटिकेट बिहेवियर होगा। कोई भी यहाँ पे फॉल्स लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज करना है। ये सारी चीजें याद रखना। एडिशनल टिप्स यार अब क्या हो सकते हैं, मैं थोड़ा से शेयर कर देता हूँ जो तुम्हें वेरी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो शेयर करी थी, क्या कि लिंक्डइन को एक्टिव रखो, पोस्ट करते रहो, और अपने लर्निंग प्रोसेस की पूरी जर्नी वहाँ पे शेयर करो। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे ना बंदे होंगे जो कि UI UX डिज़ाइनर होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे। ऐसे वाले केस में क्या रहता है ना, हमें वर्क ऑफ प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक iOS डेवलपर हो, तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ऑफ कोर्स तुमने कोई डिजाइन क्रिएट किया होगा। अब रिज्यूमे में अगर मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने क्रिएट किया, वो चीज़ मुझे जब तक नहीं पता चलेगी, जब तक मेरे पास का प्रूफ नहीं रहेगा। किसी एंड्रॉइड डेवलपर ने कोई ऐप क्रिएट किया तो उसका ऐप का कहीं ना कहीं लिंक तो उसने डाला होगा, कहीं ना कहीं तो उसको डाउनलोड करने के लिए उसने लिंक शेयर किया होगा। तो मैं वो सारी लिंक्स वहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। याद रखना, अगर कोई भी आप ऐसे रिलेटेड फील्ड से हो जहाँ पे वर्क ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तो वर्क ऑफ प्रूफ का वहाँ पे नीचे लिंक जरूर शेयर करो, बहुत जरूरी है। अगर तुमने नहीं डाला तो तुमसे सबसे पहला काम ही यही होगा कि तुमसे वर्क ऑफ प्रूफ मांगेंगे कि मुझे शो करो, तो उस केस में भी तुम्हें देना ही पड़ेगा। इससे बेटर है कि पहले से वहाँ पे इंडिविजुअली उस प्रोजेक्ट का जो भी लिंक है वो शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी गलती ये भी करते हैं लोग, बड़ी कंपनीज को ही सिर्फ देखते हैं इसमें प्लेसमेंट हो जाए, इसमें इंटर्नशिप मिल जाए। ऐसा नहीं करना। इंटर्नशिप का एक बहुत अच्छा मैं फैक्ट बताता हूँ। 2-3 फैक्ट्स में पहला फैक्ट तो ये है कि इंटर्नशिप अगर बहुत अच्छी जगह से कर रहे हो ना तो उसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है मैंने गली में कोई शॉप थी, मैंने वहां पे 4-5 घंटे काम करती हूँ, मैंने इंटर्नशिप में डाल दिया, फायदा नहीं है। इंटर्नशिप इससे बढ़िया मत करो। अगर करनी है तो बहुत अच्छी जगह से कर रहे हो, बहुत अच्छा एक फर्म है, एक रेपुटेड फर्म है, वहां से करो, तो तुम्हारे को फ्यूचर में सच में कुछ बेनिफिट मिलेगा। वरना फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना उससे बढ़िया है कि तुम उससे ज्यादा अपना सारा टाइम डीएस पे अपनी स्किल्स में डेवलप करने में लगाओ, एक सीधा एक अच्छा सा टेक्निकल राउंड क्लियर करो। दैट्स अ मोर लाइक जेन्युइन वे टू क्रैक द इंटरव्यू। दूसरी चीजें क्या रहेंगी, सिर्फ लिमिटेड कंपनीज को मत देखो। काफी लोग सिर्फ मांग बेसिकली हो गया अपना नेटफ्लिक्स, एडोबी, इन सारी कंपनीज में ही सारा टाइम वेस्ट करती है। नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके लिए देखो। स्टार्टअप्स के लिए भी देख सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसी बहुत रिप्यूटेड कंपनी मुझे 4 LPA पे हायर कर रही है, ठीक है, दूसरी कंपनी मुझे 6 LPA दे रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार कि एक बड़ी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, तो वहाँ पे कंपेरिजन में मैं जा सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर उस कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा बल्कि इन्वायरमेंट है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टअप में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, उस स्टार्टअप का मुझे फ्यूचर दिख रहा है, मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया है, मैंने वहाँ के लोगों से काम के बारे में सुना है, तो मैं उस स्टार्टअप में जाना ज़्यादा पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू कि कोई रिप्यूटेड बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो काफ़ी लोग आज के टाइम में TCS को ज्वाइन नहीं करना चाहते, विप्रो को ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो कि स्टार्टअप्स के बारे में जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स पे दोबारा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम करना। इंट्रोवर्ट हो या फिर बात नहीं कर पाते हो, तो सबसे अच्छा अपने किसी भी एक अच्छे फ्रेंड को लो, एक टॉपिक लो, उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, सेशंस क्रिएट करो कि यार इस टॉपिक पे आज मैं 10
लाइन्स या फिर 10 टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूँगा, उसके 10 पे तुम डिस्कस करना। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट अपने आप हो जाएगा और तुम्हारी स्किल्स अच्छी-अच्छी क्रिएट हो जाएँगी। अगर एज़ तुम एचआर के सामने अपने बारे में कुछ नहीं बता पाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते हैं सही से। अगर मैंने उनको एट अ टाइम फ़ोन कर लिया किसी टाइम दिन में और मैंने पूछ लिया अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दे दो, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे यार कि क्या बोलें। और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें देनी होती है मैं बता देता हूँ, लिख लो कहीं पे। इंट्रोडक्शन में कुछ भी कहानी नहीं बनानी है। नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो, फैमिली में कितने लोग हैं, कौन-कौन है, थोड़ा-सा बता दो, हॉबीज़ क्या हैं, खत्म, दैट्स इट। कभी कन्फ्यूज़ मत होना, कोई नींद में भी 3 बजे भी बोल देना इंट्रोडक्शन देना। नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, परस्यूइंग कर रहे हो, कंप्लीटेड कर लिया, कहाँ से किया है, दैट्स इट। फैमिली में कौन है, कितने लोग हैं, हॉबीज़ क्या है, बस खत्म। बस ये 5 ही पॉइंट बताने हैं। यही होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब बस होता है अपने बारे में बताओ। उससे ज़्यादा कुछ भी वहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। और लास्ट पॉइंट में क्या ध्यान रखना कि रिज्यूमे खाली नहीं छोड़ना, जो मैं बता चुका हूँ। टेम्पलेट वही चूज़ करो जहाँ पे तुम्हें लगे कि यार मैं फिल कर सकता हूँ। कम चीज़ें लिखने को सिंगल फॉर्मेट फॉलो करो, उसको लिख दो। खाली-खाली लगेगा तो यार मैं ही सीधा रिजेक्ट कर दूँगा, मैं कहूँगा इसके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। तो वहाँ पे बहुत स्मार्ट वर्क करना है कि किस तरीके से मेरा थोड़ा-सा रिज्यूमे भरा-भरा लगे, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक लिंक्डइन प्रोफाइल तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। Let me know if it visible for you. I guess it's visible, right? Yeah, okay, Yes, that's sir. it. Okay, so basically मैंने एक कैंडिडेट है, इसका लिंक्डइन खोल रखा है। हम चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यार इसका लिंक्डइन सही है तो क्यों है और क्या कुछ गलतियां हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नेम है। हाँ, यहाँ पे नेम ऐसा क्यों है, ये एक जेनरिक रीजन हो सकता है कैंडिडेट का, बट आप हो सके तो अपना पूरा नेम लिखो। प्रोफाइल पिक्चर की बात करा तो प्रोफाइल पिक्चर शुड बी लाइक दिस। पासपोर्ट साइज है, शोल्डर तक है, प्रॉपर फोटो विजिबल है, बैकग्राउंड प्लेन है, बैकग्राउंड में कोई लाइटें नहीं चमक रही, कोई डार्क चीज नहीं है, डल नहीं है, क्लियर फोटो विजिबल है कि कैंडिडेट हाँ भी सच में एग्जिस्ट करता है। ओके, देन टाइटल मेंशन करो अपना, कुछ भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा टाइटल है यहाँ पे पक्का मेंशन करो। लोकेशन डालनी जरूरी है। कॉन्टेक्ट इन्फो अपने बारे में डाल सकते हो। बहुत लोग क्या बोलते हैं, फोन नंबर नहीं डालना पसंद करते, तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट तो बहुत सही है। बैनर शुड बी ऑप्शनल। अगर बैनर डालोगे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड तो बहुत अपीलिंग लगता है देखने में। दैट्स द ओनली थिंग कि बैनर का वहाँ पे जगह दी है, ठीक है। बैनर एक अच्छा सा ढूंढो। अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो उसके हिसाब से मैं क्या बैनर मेरे के लिए सूट करता है, मैं वो चूज करके लगा सकता हूँ। तो वो अपने एज ए इंडिविजुअल देख सकते हो। उसके बाद अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे ना इस बंदे की एक्टिविटीज में देख पा रहे हो, 1 मंथ पहले एक्टिव है, 3 मंथ पहले भी एक्टिव है, उससे पहले भी एक्टिविटी। इससे क्या पता चल रहा है कि यार ये बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव रहता है, यानी कि जेन्युइन कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये कनेक्ट रहता है लोगों से। ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन बना के सो गए 10 साल तक, पता ही नहीं मैंने बनाया था, नहीं। भले तुम लाइक कर रहे हो, छोटी सी चीजें मेंशन कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद अबाउट में पक्का चीजें डालो। अबाउट में क्या डालना है, अबाउट में जो तुमने समरी लिखी थी ना उठा के, वो भी तुम डाल सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है क्या लिखे अबाउट में। जो समरी उठाई थी वो यहाँ पे सीधी सीधी डाल दो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में कंपनी का नाम, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी रहेगा, ड्यूरेशन यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, टाइटल मेंशन है ऑलरेडी। उसके बाद काफी लोग ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, बट ये करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन है ना वो यहाँ पर भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना कि जरूरी नहीं है ना मेरे पास इस कैंडिडेट का पहले रिज्यूमे आएगा या फिर मेरे पास पहले से होगा, मैं तो उसको लिंक्डइन से रीच कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन से अगर मैं इसको रीच करूंगा तो मैं तो इसका यही देख पाऊंगा सबसे पहले। तो हाँ, मुझे यही से आइडिया लग जाएगा कि कैंडिडेट इस हमारे प्रोफाइल के लिए सुटेबल है या नहीं है। उसके बाद सिमिलरली दिस वन प्रॉपर तरीके से मेंशन है, स्किल्स के बारे में मेंशन है, क्लाइंट की प्रॉपर डिटेल्स हैं, देख पा रहा हूँ। वर्क और प्रूफ की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई मैंने बनाया था तो क्या बनाया था, तो ये चीज़ें बनाई थी, मैं क्लिक करके जाके देख सकता हूँ। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स,
डाल दो। जरूरी अब इससे क्या होगा कि मुझे इस बंदे का रिज्यूमे अगर ना भी मिले तो अभी मेरा आधा काम हो चुका है, मैं बंदे को जज कर सकता हूँ मेरे काम का है या नहीं है। यहाँ पर एक चीज बस कमी है, वो क्या कमी है कि इसने एजुकेशन डिटेल्स का पासिंग ईयर नहीं डाला। वो क्यों नहीं डाला, बिकॉज सीनियर कैंडिडेट, तो इसलिए वो जनरली नहीं डालते, बट हमेशा डालना चाहिए, पासिंग ईयर्स भी आप डाल सकते हो। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन आपने कभी भी लिए हैं, सबसे पहले यहाँ पे डालो। क्योंकि बंदे बहुत सारे फेक कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सर्टिफिकेशन का वहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, बट उनके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं होता, लिंक नहीं होता या सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो उस केसेस में मेरे लिए बंदा जेन्युइन नहीं होगा। तो उस केसेस में आप क्या करो, अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह भी डालो। अगर किसी को लिंक्डइन में कोई इश्यूज है तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है, वो को देख सकते हैं, ये परफेक्ट लिंक्डइन कैंडिडेट है। ठीक है, इसको मैं इजीली जज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रिज्यूमेस भी देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस कैंडिडेट का रिज्यूमे देखता हूँ। दिस कैंडिडेट का भी लास्ट वीक एज एंड्रॉइड डेवलपर कॉस्टको में हायरिंग हुई है, और जहाँ पे मतलब इवन 30 to 50 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, बट इसका प्रॉपर वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब ऐसा क्या था इस कैंडिडेट में, वो देख सकते हो, समरी मेंशन कर रखी है जो मैं बात करता हूँ। स्किल्स जो इसकी बात मैं करता हूँ, लैंग्वेज डाला, आर्किटेक्चरल डाले, क्या कर रखा है, ब्रेक करके जो चीज़ें डालनी चाहिए उस तरीके से डाला है। तो तुमको भी ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। इससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है कि यार इसकी किस डिपार्टमेंट में कौन से स्किल पे इसको काम आता है। दैट्स थिंग। सर्टिफिकेशंस के बारे में प्रॉपर मेंशन कर रखा है। मैंने बोला था क्या, एजुकेशन डिटेल्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से पहले डाल दो, स्किल्स और वहाँ पे डाल दो। उस तरीके से इसने डाल रखा है। इंस्टीट्यूट का नेम कौन सी करी है, ईयर, पासिंग ऑफ ईयर जरूरी होता है हमेशा, डाल दिया। उसके बाद जब भी आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे तो एक्सपीरियंस हमेशा क्या होता है, जो लास्ट एक्सपीरियंस जो आप करेंटली कर रहे हो या फिर आपका जस्ट जो खत्म हुआ है उसको सबसे टॉप में रखना है, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बॉटम में जाता रहेगा। इसका लास्ट जो एक्सपीरियंस है एडोबी में है, लोकेशन मेंशन कर रखा है, टाइटल मेंशन कर रखा है, ड्यूरेशन यहाँ पे प्रॉपर जैसे बोला था वैसे मेंशन कर रखा है। और वो देख सकते हो इसने क्या करा है, यहाँ पे यहाँ पे हमारे एक्शन वर्ब्स प्रॉपर दिख रखे हैं। उसके बाद एडोब एक्रोबैट जो इसका भी क्या था, यहाँ पे हमारा हार्ड स्किल्स था, उसके बारे में मेंशन कर रखा है। अब इसने क्या जनरेट करा था, एंड्रॉइड ऐप जनरेट किया था, उसने वहाँ पे बता रखा है। सिमिलरली यहाँ पे डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंपोनेंट मॉड्यूल ऑफ एक्रोबैट मोबाइल ऐप यूजिंग दिस, प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को मेंशन कर रखा है। अब कुछ लोग ये कहिए यार यहाँ पे तो कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या बोला था, वो हर जगह नहीं आएगी। ठीक है, अब इस केस में सिर्फ जो चीजें जनरेट करी है वही इसका आउटकम था, तो वो हमारे लिए इनफ होगा। उसके बाद अभी एंड्रॉइड डेवलपर है तो उसने कुछ ऑफकोर्स एंड्रॉइड का ऐप या समथिंग तो बनाया होगा, तो इसका यहाँ पे प्ले स्टोर का लिंक मेंशन कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ हाँ भी बंदा जेन्युइन है या नहीं है। लास्ट में क्या करोगे, एक इन्वायरमेंट ऐड कर दोगे। इन्वायरमेंट में मुझे आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टूल्स का यूज किया है। दैट्स इट। अगर मेरे पास कम टाइम है तो मैं इसको भी गो थ्रू कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसने कोटिन यूज किया, हाँ किया है, तो मैं सीधा यहाँ पे आऊंगा यार कोटिन पे इसने क्या काम किया था, तो मुझे ये लाइन में मिल गया, तो मेरा टाइम बच गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हो, इसने फिर से प्ले स्टोर का एक और यहाँ पे लिंक शेयर कर रखा है। मैंने जैसे बताया था, तो ये लिंक्स हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी रहता है। इससे ये आइडिया लग गया मेरे को, कैंडिडेट जेन्युइन है, इसके प्रोजेक्ट जेन्युइन है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सपोज कि इन्होंने 2018 से 2020 तक 2 साल की इंटर्नशिप करी, और 2021 में उसकी जॉब लगी, और 2023 चल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसे शो करेंगे, 18 से 20 2 साल का, उसके बाद 21 से 23 के बीच में 2 साल का, तो टोटल एक्सपीरियंस कितना साल का उसने मेंशन कर दिया, 4 साल का। बट प्रोफेशनल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस कभी भी काउंट नहीं होते। जिस साल तुमने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है उसके बाद का जितने भी तुमने प्रोजेक्ट्स करें, दैट शुड बी ओनली कंसिडर इन योर एक्सपीरियंस। दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास सैम्पल रिज्यूमेस थे, मैंने ये शेयर कर दिया। एक और मेरे पास रिज्यूमे है। अब इस रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है देखो जरा। इस लाइन में जिस चीज की मैं बात कर रहा था प्रॉपर है। इसने यहाँ पे लिखा पहले एक्शन वर्ब से, उसने फिर क्या परफॉर्म किया वो मेंशन किया। उसके बाद
इम्प्रूव हुआ, ऑप्टिमाइज हुआ, क्या चीज़ हुई वो लिखा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें में रिजल्ट आए हैं वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दी। ऐसे ही आप यहाँ पे और देख सकते हो। तो इसने इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी है, ठीक है। लिंक्स की बात कर रहा था मैं, इस प्रोजेक्ट में लिंक अवेलेबल है मेंशन यहाँ पे कर दिए, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। इसको कहते हैं वर्कअप प्रूफ। अगर काफ़ी लोग वर्कअप प्रूफ के लिए पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं और पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर देते हैं, वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। तो हमारे पास जितने भी रिज्यूमेस थे मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखा दिया। और let me show you something। अब ये कैंडिडेट का रिज्यूमे है, इसके कॉन्टैक्ट डिटेल हाइड नहीं है, तो थोड़ा देख लेना। तो बेसिकली ये एक स्प्लिट रिज्यूमे है, इस तरीके से इसने क्रिएट कर रखा है। ये रिज्यूमे भी अच्छा है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, इसने अपनी इस तरीके से मेंशन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिज्यूमे मैं बता देता हूँ ये कब काम आ सकते हैं। ऐसे रिज्यूमे जो होते हैं ना, जो क्रिएटिव साइड के लोग होते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप यूआई डिजाइनर हो, यूएक्स डिजाइनर हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे जॉब के लिए ढूंढ रहे हो जो कि नॉट इनटू मोर इनटू टेक्निकल, बेसिकली वो थोड़ा कंटेंट राइटिंग के साइड में हो सकता है, उस टाइप के रिज्यूम फॉर्मेट में ऐसे रिज्यूमे ज्यादा यूज करते हैं लोग। या फिर दूसरा केस क्या रहता है, जिनको ज्यादा लिखना होता है ना, वो भी इस तरह के रिज्यूमे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके मैं यहाँ पे स्किल्स एजुकेशन के बाद मेरे पास इतना सारा स्पेस रहेगा, मैं यहाँ पे अपनी बाकी चीजें भी अच्छे से लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि बंदे ने कम चीजें लिखी हैं बट इसने ज्यादा चीजें कवर करी है, बिकॉज में स्किल साइड में आगे बाकी एक्सपीरियंस भी साथ में आ ही रहा है, तो इसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी काम आता है। और एक और लास्ट में एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी एज अ फ्रेशर जाओगे तो 10 कंपनियां आएंगी, तो अब 10 कंपनियों में 10 अलग अलग पोजीशन होगी। कैसी, कोई फुल स्टैक हायर कर रहा हो, कोई जावा डेवलपर हायर करेगा, कोई पाइथन डेवलपर हायर करेगा। मैं तो एज अ फ्रेशर जाऊंगा, तो मुझे तो किसी में भी हायरिंग मिल जाए, मेरा तो काम बन जाएगा। तो रिज्यूमे एक तरीके से ही बिल्ड मत करना कभी भी, ठीक है। कोई अगर फुल स्टैक डेवलपर जावा फुल स्टैक का बनता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो जावा डेवलपर कर रहा था, वो फुल स्टैक की चीजें या फिर जावा बैकएंड की जॉब आ जाएगी तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्किल्स तो सारी सेम है। तो क्या कर सकता है, अपने रिज्यूमे को ट्यून कर सकता है। अगर उसमें नोड की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको नोड आता है, तो वो बैकएंड वाली पोर्शन को थोड़ा नोड ओरिएंटेड बना देगा, या फिर अपनी जावा स्किल्स में बैकएंड में उसने क्या काम किया था, वो एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करेगा, ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो अभी एज अ फ्रेशर किसी को शेयर करो, तो देख लेना कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो किस टाइप का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, तो अपना रिज्यूमे उस हिसाब से ट्यून कर देना। अगर मैं क्या नाम डेटाबेस डेवलपर ढूंढ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, स्क्वेयर, रेडिस, पोस्टग्रेस, ये सारे स्किल्स के बारे में ज्यादा फोकस रहूंगा। तो उस केसेस में मेरे को रिज्यूमे अगर कोई वैसा ही बना के देगा, तो मैं उसको इजीली रीच आउट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और लास्ट में एक और अच्छा पॉइंट है, कीवर्ड्स बहुत अच्छा यूज करना। अगर मैंने कहा नोड डेवलपर, तो नोड जो वर्ड है ना, कीवर्ड, वो मुझे रिज्यूमे में, एक्सपीरियंस में, प्रोजेक्ट्स में, टेक्निकल स्किल्स में दिखना चाहिए। अगर तुम्हारे को आता है और तुमने कहीं मेंशन ही नहीं किया है, या फिर बहुत 4-5 प्रोजेक्ट कर लिए लेकिन नोड के बारे में मैं देख रहा हूँ कि एक या दो जगह मुश्किल से कहीं मेंशन कर रखा है, तो उस केस में मैं उसको भी नेगलेक्ट करूंगा। तो कीवर्ड्स का बहुत अच्छे से यूज करना अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, आपको भावना या कोई भी शेयर कर देगा। तो ये सारी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के। ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, यू कैन रीच आउट एनी ऑफ दीज वेबसाइट्स। सारी वेबसाइट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद ये कुछ साइट्स हैं जो कि करियर बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करेगी, लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, मॉन्स्टर। और हो सके तो हर 1 या 2 महीने में अगर आपको कुछ भी चीज आपने अपने स्किल्स में ऐड किया है, तो रिज्यूमे अपडेट रखना। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद जो रिज्यूमे था आज भी वही रिज्यूमे है, नहीं, ऐसा मत करना। अपना रिज्यूमे अपडेट रखना, और हो सके तो नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन
हर जगह घूम के आते रहो, नई नई जॉब्स में अप्लाई मारते रहो। लिंक्डइन पे मैंने बता ही चुका हूँ कैसे कैसे चीज़ें करना है। ग्रुप में जाओ, लोगों से मिलो, कनेक्ट करो। उसके बाद अपनी स्किल्स वगैरह जो भी तुम सीख रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें अपनी शेयर करते रहो, तो उससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है किसी भी कैंडिडेट को। ये कुछ स्किल्स अभी मार्केट में बहुत डिमांडिंग में चल रही हैं। अगर तुम्हारे पास ये सारी स्किल्स हैं या फिर तुम्हें लगता है कि यार इसमें इंटरेस्ट है, तो कैन ट्राई। जैसे मशीन लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडिंग स्किल है मार्केट में। डेवलपमेंट है, एसईओ एसईएम मार्केटिंग है, जहाँ पे आपको कोडिंग का इतना यूज़ नहीं होगा। काफ़ी लोगों को दिक्कत ये रहती है डीएस से नहीं होती, कोडिंग में नहीं जाना बट टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएक्स यूएक्स डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, डिज़ाइन अच्छे करना आने चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग में वो लोग जा सकते हैं जिसको डेटा बेसिस पे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। साइबर सिक्योरिटी में जा सकती हो, ब्लॉकचेन में जा सकते हो, तो बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो तुम्हारा बेस्ट क्या है। इसके बाद ये कुछ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। कोर्सेरा में काफ़ी लोग सर्टिफिकेशंस लेते हैं, खाना एकेडमी, उडेमी, दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस है। यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड चेक करो कि कौन सा तुम ले सकते हो, कौन से सर्टिफिकेशंस तुम्हारे काम आएंगे। बिकॉज जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस रहेगा उतना खुद कॉन्फिडेंस आता है, यार ये चीज़ तो मैंने कर रखी है, तो आई कैन, मतलब मैं इंटरव्यू में इसको अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ। तो ये सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यू कैन फॉलो। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। तो किसी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क। Thank you, sir, for this wonderful session and sharing your experience with us. It's time for the queries now. Those who have any query can ask in the chat box. सर, शुड वी इंक्लूड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन सेल्फ इंट्रो? यार देखो, सेल्फ इंट्रो होता क्या है? सेल्फ इंट्रो तो वही हुआ ना कि तुम अपने बारे में बताओ। तो तुम अपनी वीकनेस क्यों बताओगे? अपनी स्ट्रेंथ बताओ। और दूसरी चीज, एक और चीज बता रहा हूँ, जब भी तुमसे कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, हमेशा फॉलो करना। सपोज कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो डेटा बेसिस में है, और मुझसे कोई क्वेश्चन ना कोई पूछ रहा है फ्रंट एंड या जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं अपने आंसर इस हिसाब से दूं कि जो मैं दूसरा क्वेश्चन वो मेरा पूछे ना, वो मेरा डेटा बेसिस को कनेक्ट कर दे। जैसे कि मैं फ्रंट एंड का आंसर देते थे तो उसको डेटा बेस में कनेक्ट कर गया, फिर जो उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें भी मैंने अपना आंसर देते थे उसको डेटाबेस पे ले गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 या 3 क्वेश्चन के बाद उसके माइंड में जो क्वेश्चंस जनरेट होंगे वो तुम्हारे स्ट्रेंथ पे आएंगे, जो कि मेरा डेटाबेस है तो मेरा डेटाबेस पे आ जाएगा, तो उसके आंसर करना तुमको तो पता इजी हो जाएगा। तो ये चीजें हमेशा ही याद रखना। अपने आंसर हमेशा इस तरीके से डेवलप करो कि जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला हो ना, वो तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना करे, वो तुम्हारा पहले वाले से इंटरप्रेट कर जाए। और कोई क्वेरी? Yes, sir. Can we omit the summary part in a resume? वनिश का क्वेश्चन ओमिट मुझे समझ नहीं आया, कुछ वर्ड मिसिंग हो गया क्या? सर मेरी भी एक क्वेरी थी। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। सर एज अ फ्रेशर हम लोगों को अपना रेज्यूमे 1 पेज तक लिमिटेड रखना चाहिए या फिर 2 पेजेस, क्योंकि ऐसा होता है वन पेज ऑलवेज ट्राई फॉर अ वन पेज, इवन दो नोट यू आर लाइक फ्रेशर ना भी हो ना। देखो, जो मैंने रिज्यूमे तुम्हें अभी नीचे दिखाया ना, जो 2 या 3 पेज पे जा रहे थे, वो कैंडिडेट्स हैं जो 8 या 10 साल से काम कर रहे हैं। अब इस वाले केस में क्या रहता है कि हमारे पास उतना टाइम तो नहीं है कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस पूछूंगा, तो उस केस में उन्होंने किस बड़े क्लाइंट्स पे क्या क्या काम किया था एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डालते हैं। बट इन स्टार्टिंग फेज 2 3 4 5 साल तक या फिर 3 से 4 साल तक अपने रिज्यूमे एक से मैक्सिमम अगर 2 तक जा रहा तो जाओ, वरना नहीं। उसके ओके कैन थैंक वी यू। लीव द समरी पार्ट इन अ रिज्यूमे? समरी पार्ट देखो यार, पता क्या होता है, समरी पार्ट तुम लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या, जस्ट एन एग्जांपल कि किसी कैंडिडेट का मेरे पास आया, अब मैं तुम्हें हर वक्त तो फोन करके तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं लेने वाला, ठीक है? और हो सकता है कि मेरे पास 100 रिज्यूमे पड़े हैं, तो मैं 100 रिज्यूमे में अब मैं ऑफ कोर्स कीवर्ड सर्च कर लूंगा, देख लूंगा। बट अगर तुमने समरी वगैरह लिख रखी है, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा ना, जब मैं तुम्हारा रिज्यूमे क्लाइंट को आगे रेफर करूंगा, ठीक है, कि यार ये बंदा अच्छा है, तो वो मुझसे पूछेगा यार ये बंदा क्यों अच्छा है। तो जो रिज्यूमे मैंने एनालाइज किया वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा ना, वो मुझसे पूछेगा ये बंदा क्यों अच्छा है, मुझे जल्दी से बताओ।
उस केस में जो राइटअप्स होते हैं ना 2 या 4 लाइन का हमें लिख के देने पड़ते हैं, या फिर जो हम कैंडिडेट से राइटअप्स लेते हैं, तो वो टाइम हमारा बचेगा। क्यों? मैं समरी में से निकाल सकता हूँ कि यार ये चीज की बेस्ट है, ये चीज की बुरी है, तो मेरा टाइम बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इमीडिएट टर्न ऑफ सिर्कुलेटर का क्या रहता है? हमेशा फॉन्ट्स एक जैसा रखो, रंग बिरंगे फॉन्ट यूज मत करना, हो सके तो कैलिबरी रखो और फॉन्ट साइज 11 रखो, दैट्स इट। माइंड में कर लो, कभी कंफ्यूज हो रहे हो, कैलिबरी, फॉन्ट साइज 11, बस जो ऊपर का नेम है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना 12-13 पर, दैट्स इट। तो दूसरी चीज कि रिज्यूमे बहुत सेटल होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेम्पलेट यूज तो कर लेते हैं, हेडर में डाल देते हैं, फुटर में डाल देते हैं, तो रेनबो सा बन जाता है कुछ, वो नहीं करना है। सिंपल शॉर्ट बहुत काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, before get any experience in live project I got laid off, so I don't understand what to mention in my resume. हम्म यार देखो, हर वक्त क्या होगा कि लेड ऑफ का टेंशन रहेगी, ठीक है मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुमने 1 महीने भी कुछ तो काम किया होगा ना, 10 दिन भी कुछ काम किया होगा, वो भी काफी रहता है रिज्यूमे मेंशन करने के लिए। 10 दिन में भी जो तुमने काम किया है वो भी लिख दो, काफी है। 10 दिन में अगर मैंने सिर्फ HTML के वही सीखे हैं ना, टैग क्या होते हैं, मैं वो भी लिख दूंगा ना इतना, बट जेन्युइन चीज लिखूंगा, वो ज्यादा सही है। इस इवन दो कि मैं 10 लाइन का डिस्क्रिप्शन बना दूं, नोट किया था, ये किया था, उसमें तुम फंस जाओगे, तो वो चीजें मत करना। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कैन वी नेगोशिएट? देखो सैलरी वाला जो प्रोसेस होता है ना, मैं बताऊं तुम्हें, वो सबसे लास्ट स्टेज होता है। जब तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम्हारा रोल असाइन हो जाएगा, जब तुम्हारे पास पेपर्स आ जाएंगे, देन तुम्हारे को HR टीम सैलरी के लिए पूछेगी, ठीक है? तो उस टाइम पे तुम नेगोशिएट कर सकते हो। अर्ली स्टेज में तुमने अगर नेगोशिएट कर लिया, तो होगा क्या कि यार वो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर से चला जाएगा। लेकिन जब तुम फ्रेशर नहीं हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो चुका है 3 4 5 साल बाद, तब ये चीजें, तुम जैसे तुम्हारा राउंड क्लियर होगा तुम तब भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? या फिर इनिशियली पूछ सकते हो कि यार कितने का पैकेज है, मुझे इस रोल पे कितना मिल सकता है, वो तब पूछ सकते हो, बट स्टार्टिंग में वो कभी मत पूछना। कैन वाई डू कैंडिडेट गेट रिजेक्टेड इन HR राउंड? HR राउंड में सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस होते हैं 2-3 बेसिस पे होते हैं। पहला सबसे होता है इंट्रोडक्शन। मैं कैंडिडेट से उसका इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में डाउट लग रहा है, तो मैं उसको आगे नहीं भेजूंगा, क्योंकि जब उसका मेन टेक्निकल राउंड होगा पैनल के साथ, तो मुझे पता है यार कम्युनिकेशन स्किल यहाँ अच्छी नहीं है, वहां तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। दूसरी चीज, मैंने उससे पूछा लास्ट प्रोजेक्ट में तुमने नोट में क्या क्या काम किया था, उसने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा, मैंने पूछ लिया तुमने इससे ये बनाया था। अगर तो कैंडिडेट मुझे एग्जैक्ट आंसर एट अ टाइम दे देता है, नहीं घुमाता, तब तो मैं कह सकता हूँ हाँ इसने सही में काम किया था। बट इफ ये अगर नहीं बता पाएगा, तो मुझे वहीं पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। तीसरी चीज होती है लिंक्डइन प्रोफाइल। एज अ कैंडिडेट तुम्हें लगता है कि तुम बच जाते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यार उसने अभी तक मेरा लिंक्डइन नहीं देखा होगा, बट होता क्या है, जब भी हम किसी को रीच करते हैं ना, उसका रिज्यूमे, उसका लिंक्डइन, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल हम पहले ही सब कुछ एनालाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में कर चुके होते हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी लुकअप मिल गया, उसने बोला है मैंने बैचलर 2008 में करी थी, लिंक्डइन में दिख रहा है 7 में करी थी, 10 में करी थी, बस वहां पे कितना भी अच्छा कैंडिडेट हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। या फिर कोई एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि मैंने यहाँ से जून से लेके मई में काम किया था, रिज्यूमे में कुछ और मेंशन कर रखा है, लूप होल मिल गया, रिजेक्ट कर देंगे। तो छोटी सी भी छोटी डिटेल्स होगी, खराब तो नहीं कर देंगे। किसी ने लिंक्डइन बना तो रखा है, बस 5 या 10 कनेक्शन है, फोटो भी नहीं लगा रखी, टाइटल भी नहीं है, तो ये सारी चीजों से भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। Why should we write in our cover letter? Cover letter is most like your portfolio thing. ठीक है, तो कवर लेटर क्या होगा, जब तुम रिज्यूमे वगैरह बना लोगे ना, तो आजकल कवर लेटर से ज्यादा तो क्या होता है, पोर्टफोलियो मांगते हैं, बिकॉज सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करके रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक टूल होता है। अगर नहीं भी है तो एक गिटहब के मेथड या बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एक छोटा सा अपना कवर लेटर, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट करके रख लो। तो अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी बचेगा, लिंक कॉपी करके पेस्ट करके उसको भेज दो, दैट्स इट। या आई कंप्लीटेड ट्रेनिंग इन दैट पीरियड बिफोर लेड ऑफ। हाँ, तो बहुत सही है, अगर तुमने जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, तो जो भी एक्सपीरियंस है, दैट शुड वर्क। शुड वी आल्सो इंक्लूड फ्रीलांस? बिल्कुल कर सकते हो, फ्रीलांसिंग काम करी थी तो तुमने
देखो फ्रीलांसिंग का क्या सीन रहता है ना, मैं बताता हूँ। अगर तुम एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो डाल दो, ठीक है। लेकिन सपोज कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ और मैं फ्रीलांसर पहले करता था, मैं किसी दूसरी फील्ड में, उस केस में मैं मेंशन नहीं करूंगा, ये याद रखना। सेम फील्ड में फ्रीलांस कर रहे हो, उसी फील्ड में जॉब भी जा रहे हो, मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो लिंक बिल्कुल डाल सकते हो, लिंक्डइन गिटहब पोर्टफोलियो लिंक डाल सकते हो, नो वरीज। बट पूरा लिंक मत डालना, उसका जैसा मैंने तरीका बताया वैसे डालना। और किसी कोई कैरी है तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं। So there's one query from Diksha Soni. Should I mention my portfolio website link in my resume? मैंने अभी बताया जस्ट कि हाँ कर सकते हैं, बट जो तरीका बताया वैसे करना है कि पूरा लिंक ना डाल के एक पोर्टफोलियो का छोटा सा नेम क्रिएट करके उसको यूआरएल से लिंक कर देंगे, दैट्स इट। या एनी मोर क्वेरी? हाँ, you can connect me via LinkedIn, no worries. Will you also do our resume review? बिल्कुल, किसी को करवाना है तो शेयर कर सकता है, no worries. You can share just your screen and let me know. What should we do after getting a rejection from a job offer? देखो कंपनी बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों की आज कंप्लेन आ रही है, लेड ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं। हाँ दैट्स अ थिंग, बट इंडिया में कितने ले ऑफ है ये भी ध्यान दो ना, बाहर की कंपनीज में हो रही है। पहली चीज तो ये। एंड द सेकेंड थिंग कि जॉब ऑफर से रिजेक्शन आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है कि यार तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो, ठीक है, तुम्हारा पाइथन बहुत स्ट्रांग हो, बट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आई है या फिर जो कैंडिडेट या क्लाइंट को नीड है, वो पीएचपी का बंदा चाहिए होगा। तो उस वाले केस में क्या रहेगा ना, तुम इस वजह से रिजेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्किल्स खराब थी या फिर तुम अपना कॉन्फिडेंस लो करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर पोजीशन हर किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो सबसे बेस्ट चीज यही मैंने बताई कि सबसे पहले देखो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए है या नहीं है, क्योंकि बाद में जॉब मिल भी गई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तब दिमाग खराब हो जाएगा। तो पहले ही बेटर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करो, लगता है ये मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे क्रिएट करो। आज के टाइम में मैं सच बता रहा हूँ, एक बात बताओ कि गूगल, अमेज़न, ये सारी जो भी हायरिंग्स होती हैं, बड़ी जो भी नॉर्मल कंपनीज की होती है ना, सबसे पहले इनकी हायरिंग जो पोस्टिंग्स होती हैं या फिर जो सर्कुलेशंस आते हैं, वो लिंक्डइन के थ्रू आते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है ना, तुम्हें नौकरी में रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। इंडीड कोई रेफरेंसेस प्लेटफॉर्म नहीं है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें रेफरेंसेस भी मिल सकते हो। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी जॉब को देखने या ढूंढने के लिए। if you have like a connections with a good number of like community, तो हो सकता है तुम्हारे उस communities को रेफर कर दे, तो ये तुम्हारे को फायदा मिलेगा। अधीराज पांडे का रिज्यूमे लिंक आया मेरे पास, let me check, give me a minute. मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वहाँ पे, सो let me know. No worries, thank you, okay, I will share, give me a minute. हाँ, अधीराज पांडे, लोकेशन मेरठ उत्तर प्रदेश। सबको पता है इंडिया में ही रिज्यूमे भेज रहे हो तो इंडिया हटा दो, जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश काफी है। एजुकेशन डिटेल्स ठीक है, फ्रेशर का रिज्यूमे है। हाँ, फ्रेशर का रिज्यूमे है तो एजुकेशन डिटेल ऑन टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस डाल रखा, बैकएंड इंजीनियर इंटर्न का डाल रखा है, सही है, फॉर्मेट सही है। यहाँ पे बिल्ड मल्टीपल फ्लास्क एपीआई फॉर टेंसरफ्लो एलएसटीएम मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है रिज्यूमे में, जैसे कि ये स्किल्स के बारे में मेंशन कर रखा, यूज़ किया था
क्या काम किया था, ऑफ कोर्स वो मेंशन किया है, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद एक्शन वर्ब का भी अच्छा यूज कर रखा है, वो भी एक अच्छी चीज है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा सा और मेंशन कर सकते हैं, हार्ड स्किल्स के बारे में अच्छा मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो कि सॉफ्ट स्किल्स का उसमें क्या रोल था, ठीक है, इससे क्या तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प हुई, थोड़ा सा कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते जरूरी नहीं है इस गोल। लेकिन छोटी छोटी चीजों को और ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा था, फुल स्टॉप मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, अभी छोटी चीजें बट ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग हमेशा 2-3 बार चेक कर लेना रिज्यूमे का हमेशा ही, सारी स्पेलिंग सही है या नहीं। IIT मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में अब इसमें बस क्या चीजें बताई थी मैंने, जो ये इन्वायरमेंट है बेसिकली, तो इन्वायरमेंट नीचे आता है, ये तो 4 पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन लिखो इन्वायरमेंट, उसके अंदर ये 4 और 5 चीजें डाल देना, काफी है। सोर्स कोड यहाँ पे है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लिंक जैसे यहाँ पे बहुत सही ढंग से डाला हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर अल्फा अल्फाबेट के अंदर से लिंक को इनहेरिट कर रखा, दैट्स अ गुड थिंग, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। टेक्निकल स्किल्स को यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट्स को बाद में डालना, पहले टेक्निकल स्किल्स डाल दो ऊपर। टेक्निकल स्किल्स हमेशा ऊपर रखना, ये चीज मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशंस सही है, तो इसकी बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, बाकी मुझे ये रिज्यूमे काफी सही लग रहा है। और ये जो चीजें हैं ना, इतनी फैला के ना लिखने की बजाय थोड़ा और इसको सेटल कर सकते हैं, मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो बस यहाँ पे छोटी सी छोटी बस ऊपर नीचे करना, बाकी ये रिज्यूमे काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर्टिफिकेशन की लिंक्स आर ऑलरेडी देयर, सो ये भी अच्छी चीज है। इससे मैंने क्या बोला था कि मुझे पता लग जाए कि हाँ भी कैंडिडेट के पास सही में सर्टिफिकेशन है, उसकी सारे लिंक्स जेन्युइन है, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है किसी के लिए भी। यहाँ पे So या बोलो। there are two more queries. One is how LinkedIn helped me to seek internship and job offers. सबसे पहली चीज, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, जाओ ग्रुप, लिंक्डइन पे बहुत सारे अवेलेबल है, जाके सबके अंदर ज्वाइन कर लो। पाइथन में इंटरेस्ट है, पाइथन डेवलपर के वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, जाओ सबके सारे ज्वाइन कर लो। फुल स्टैक में जावा डेवलपर में इंटरेस्ट है, जाओ सारे के सारे कर लो, पहली चीज तो ये। और लिंक्डइन में अगर तुम कभी भी जाओगे ना, तुम्हारे को वहाँ पे जॉब ऑफर्स का एक ऑप्शन मिलता है, जॉब पैनल में जाओ, जॉब पैनल में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, माई जॉब्स, जॉब अलर्ट्स, दुनिया भर की जो तुम्हारी रिलेटेड जॉब्स रहेंगी, तुम्हारे को यहाँ पे आएगा ऑप्शंस में, जाओ अप्लाई कर दो सबके लिए। दूसरी चीज, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आता यार कि ये मुझे वो स्किल सही में आती है नहीं आती, स्किल असेसमेंट में जाओ, सारे के सारे स्किल्स के बारे में वहाँ पे ऑलरेडी असेसमेंट ऑलरेडी दे रखे हैं, जाके अपना टेस्ट लेकर आओ, हाँ कि हाँ भाई कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, लग रहा है कि हाँ भाई इसमें अभी मुझे और सीखने की जरूरत है, तो उसको दूसरी बार में जाके फिर सीख देकर आओ। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे ऐसा नहीं है एक दिन महीने में एक दिन आ रहे हैं, नहीं, रोज आओ, देखो कुछ भी नहीं आया आया तो अप्लाई मार दो, अप्लाई करने के कोई पैसे लग नहीं रहे, अप्लाई करना है। लिंक्डइन में अप्लाई करना इजी रहता है, बिकॉज तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोफाइल उससे शेयर हो जाएगा, तुम्हारे को तो पहले से थोड़ा एक्सपोजर मिलता ही है। उसके बाद रिज्यूमे वगैरह अपडेट कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे रिज्यूमे अपडेट करने का ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, तो ये सारी चीजें याद रखना। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, होम पे जाओ, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जाओ, जैसे ये मैंने कुछ ग्रुप्स अपने ज्वाइन कर रखे हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे से रिलेटेड जैसे जावा के ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट के ग्रुप्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ग्रुप में जाओ, जैसे जावा डेवलपर्स लुकिंग फॉर न्यू जॉब। अब इस जॉब में इस वाले ग्रुप में मैं जाऊंगा तो मुझे मोस्टली जो लोग मिलेंगे वो या तो जावा के बारे में हायरिंग कर रहे होंगे, और उन बंदों के मेरे पास वही लोगों के रिज्यूमे या फिर कनेक्शन आएंगे जो कि जो ढूंढ रहे होंगे। देखो, तो काम आसान हो गया ना। नौकरी में क्या रहता है ना, तुम डिपेंड करते हो Naukri.com, इंडीड में कोई मेरा रिज्यूमे आके देख लेगा तो मुझे रीच करेगा, बट इसमें क्या रहता है कि तुम अपने हिसाब से भी एफर्ट्स लगा सकते हो। और कुछ पूछना है किसी को?
So one question is also left that when job role is of front end development, why do company ask of DSA? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ मेरे को, जब 12th करके पहली बार फर्स्ट ईयर में बीटेक करने गए थे तो उसमें अभी तो कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स और मैथ्स क्यों पढ़ी थी? तो ऐसा ही इसलिए होता है, देखो क्या होता है ना, डीएसए से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइक डिग्री। ठीक है, तो पहली चीज तो तुम उसके लिए नहीं छोड़ सकते। और होता क्या है ना, किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में जो तुम्हारा एक प्रॉपर जॉब टाइटल असाइन होता है वो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद होता है। इनिशियल स्टेज में ना ही तुम प्रॉपर एज अ फ्रंट एंड जाते हो ना बैक एंड जाते हो। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे यार बंदा बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शनली स्ट्रांग हो, बट एज अ स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर इन टाइटल्स पे ही हायर करती है। फिर होता क्या है, 2-3 साल वो काम करवाती है अपने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके बाद वो अपने हिसाब से बेसिकली करती है काम। तो ये चीजें तो पहली चीज आप याद रखना। दूसरी चीज ये क्या कर सकते हो कि फ्रीलैंसिंग वाला जो केस होता है ना, उस केस में ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन जब भी कंपनी को हायर करेगी तो एप्टीट्यूड राउंड जरूरी है। इवन तो तुम जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा एक्सलेंट हो, लेकिन पहला राउंड तुम्हारा एप्टीट्यूड का ही होगा, वहां पे मैथ और इंग्लिश क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये सारी चीजें तो रहती हैं यार। मैं इस दुख को समझ सकता हूँ कि वेब डेवलपर बनना है, वो स्किल्स अच्छी हैं बट डीएसए अच्छा नहीं है। तो इस केस में एक अच्छा टिप मैं दे सकता हूँ, क्या करो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेकार है ना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हो। एरे क्या होता है, 1D एरे, 2D एरे क्या होता है, क्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बीएफएस डीएफएस में क्या डिफरेंस होता है, ट्रीज और बाइनरी सर्च में कौन सा बेटर है। तो ये सारे जो कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका थ्योरिकल हमेशा याद रखो। किसी एचआर ने फोन करके पूछ लिया या फिर किसी ने इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, कभी कभी तो लग भी रहता है कि तुमसे क्वेश्चन ना करवा के सीधा पूछ ले कि बताओ मुझे ये सर्च करना, तो बाइनरी सर्च करूँ या फिर कोई और सर्च करूँ। तो ये सारी चीज़ अगर तुम्हें पता रहेंगी तो भी बहुत बहुत टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें शायद कोड ही ना भी करनी पड़े। तो ये चीज़ याद रखना। सर कैन आई आल्सो शेयर माई स्क्रीन टू शो रिज्यूमे फॉर करेक्शन? हाँ, कर सकते हो, नो वरीज। Yakshita, you can share your screen. Hmm. Akshita, Akshita, can you just zoom out your resume? यस सर। सर एक्चुअली मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हैं जिसमें कॉन्टैक्ट और मेरे नेम कोई और कोई बात एड्रेस। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर इज इट एजुकेशन डिटेल्स विजिबल? में हाँ दिख रहा है मुझे, जितना चल जाएगा काम, नो वरी। स्किल्स, अब यहाँ पे ना देखो, जो तुमने स्किल्स में क्या कहानी कहानी सी लिख दी है काफी ना, तो ये नहीं चलेगा बेसिकली। स्किल्स को मैंने क्या कहा था, जस्ट बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। तो उस हिसाब से स्किल्स को एक तो तुम ठीक कर लो। दूसरी चीज, जो तुमने सर्टिफिकेशंस वगैरह अगर वहां से कुछ लिया है तो उसके लिए तो अलग से मैंने बोला ही है, तुम अचीवमेंट्स में डाल सकते हो। तो वो तुमने ऑलरेडी अगर डाल दिया है। और पहली बात यहाँ पे मैं एक चीज क्या देख रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर एक इंग्लिश का ग्रामर फॉर्मेट यूज किया हुआ है, उसको ना लिख के सिंपल छोटा सा मेथड फॉलो करो, बस बाकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक है। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश की कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट एंड सिंपल करना है स्किल्स को, जैसे मैंने सिखाया। लैंग्वेज में क्या डाल सकते हैं, क्या क्या डालना हो तुम अपने हिसाब से डाल लेना। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह लिया तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन कॉलम बना, उसमें डालो। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स तुमने ऑलरेडी डाल ही दिया है। तो तुमने ये जो लिखा ना, व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12th, व्हेन आई वाज इन माय 10th, ऐसे नहीं लिखते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अगर तुमने 7th क्लास में कोई ड्राइंग कंपटीशन जीता था तो वो उसका अचीवमेंट मेरे मतलब अभी मेरे किसी काम का नहीं है। तो ठीक है, तो वही जो मेन चीजें रहती हैं, जो बड़े अचीवमेंट्स है जो कि इस प्रोफेशन में, हाँ मुझे सही में लगता है कि मेरे वर्थ इट है, वही मेंशन करो।
ये याद रखना। तो ऐसे रिज्यूमे में थोड़ा सा तुम्हें करना पड़ेगा, चेंजेस करने की जरूरत है इसमें काफी। ओके Yes, sir. Thank you, sir. ओके। Akshita, you can just turn off your screen share. That's good. I guess there are no more queries left. Yeah. You all are provided with the feedback form in the chat box, which is necessary to be filled in order to get the certification. Awesome. Okay. Thanks, everyone. Have a Thank you great to day. all the participants for being here with us today and have a wonderful day ahead. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Bye.